Good afternoon, everyone. I, on behalf of Export Promotion Council for Handicrafts, welcome you all to today's very important webinar on production protocols during pandemic. As they say, the show must go on. The manufacturing activity must continue as it affects the livelihood of the millions who are engaged in the production of handicrafts. It is important that all the manufacturing units which are in operation should follow all necessary COVID guidelines and ensure that the virus is not spread through them and the wheels of business keeps moving. In order to deliberate on the subject, today we have with us Shri Ravi K. Pasi, Chairman EPCH, Shri Rajkumar Malhotra, Vice Chairman EPCH, Shri Kamal Soni, Vice Chairman EPCH, Dr. Rakesh Kumar, DG EPCH, Shri Pradeep Muchala, Member of the Committee of Administration of EPCH, COA EPCH, Shri Rajesh Jain, Prominent Exporter from Delhi, and Shri Avdesh Agrawal, Secretary, Muradabad Handicraft Exporters Association. To begin with, I would request Dr. Rakesh Kumar to deliver his welcome address before we proceed to the discussions. Dr. Rakesh Kumar. थैंक यू राजेश रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आज इस समय कोविड के समय में खासतौर पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे श्री रवि पासी चेयरमैन EPCH, हमारे दोनों वाइस चेयरमैन श्री RK मल्होत्रा, श्री कमल सोनी, हमारे लीडिंग मेंबर्स, परमानेंट मेंबर श्री राजेश जैन जी, श्री अवधेश अग्रवाल जी, रीजनल कोऑर्डिनेटर, हमारे COA मेंबर्स और जितने भी हमारे सीनियर मेंबर्स हमारे ट्रेड से जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वास्तव में आज का समय एक बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है। अगर इस समय आप किसी अस्पताल के अंदर या बाहर ऑक्सीजन और दवाइयां नहीं ढूंढ रहे हैं तो समझिए आप पर परमात्मा की असीम कृपा है। देश में हमारी ज्यादातर जनता इस समय इसी उलझन में उलझी हुई है, लेकिन इसके साथ ही हमारा दूसरा कर्तव्य जो कि हमारा ट्रेड, जो कि रावत जी ने कहा कि बिजनेस मस्ट गो ऑन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते हमारे देश की उस अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है जिससे कि हम जरूरतमंदों को तमाम दवाइयां और बाकी चीजें प्रदान कर सकते हैं। In the last few days, when we were talking about the webinars on the business promotion, one of our close friend, Mr. Rajesh Jain, called me, and that call was followed by some other prominent members also. And they said, while they have some business with them, it is right now very difficult to have a set plan for the management and the management system within the organization, because most of the people in the staff and the factory, they are facing a lot of challenge. They are absentee, and in certain cases, the workers force is also affected. There are issues for the plan for infrastructure. There are challenging issues for the plan for the departments and the stations within the organization. There are issues for the plan for the visitors, how to handle them within the organization. There are challenging issues for the plan for the staff, plan for the workplace and the processing unit, the plan for movement of the goods, the plan for the raw material, the plan for the finished goods, movement in and movement out. There is need to have a check and balances for the plan for the warehouses, plan for the gathering, plan for the outsource, and the last but not the least, there is most important issue for the plan for the emergency response, because we do not know what will be the guideline on Monday
or what will the guideline tonight from the government? Amidst of that, we have export orders with us, and this is a time we all should learn from the various best business practices that are being adopted by our colleagues. And that is the reason today we are present here interacting on production protocols during this pandemic time. Our expert panel is being led by Mr. R.K. Malhotra, Vice Chairman, EPCH, who is known as the man for the compliance, who has already led many sessions of EPCH on the compliance. He will also be assisted by other senior faculty like Mr. Kamal Soni, Mr. Avdesh Agrawal, Mr. Rajesh Jain, Mr. Pradeep Uchala, and many of you. And there would also be open house discussion. We have to learn from the various experiences, and I think this is a time to interact on the subject. With these words, I would now request Mr. Rajesh Rawat to first of all give a message, that is a message for the society through EPCH, and after that, Mr. R.K. Malhotra, please take the session forward. Thank you very much for all of you joining with us this afternoon. Thank you, sir. Thank you very much for those encouraging words. Now, Satpal, can you share the screen? Share screen करके चलाओ. Yes, sir. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Thank you, May I Satpal. request Mr. R.K. Malhotra, please take the session forward. Thank you, Ji. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I am R.K. Malhotra, Vice Chairman EPCH. आज हम इस कोविड पीरियड में आपस में मिलजुल के जो बैठ रहे हैं ये वेबिनार में, इसके अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपस में विचार विमर्श करेंगे कि हम इस टाइम पे एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम इस टाइम पे ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे. आपको शायद 1 साल पहले की बात याद होगी, मार्च में जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने ये सोचा था कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लॉकडाउन हो रहा है, 2 महीने रहेगा, 3 महीने, 4 महीने. लास्ट में हमने ये सोचा था कि ये दिसंबर 20 तक सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद रूटीन एज बिजनेस का चलना शुरू हो जाएगा. और लगभग वैसा ही हुआ. पर अभी ये जो दोबारा ये सब चीज आई है, तो अब ऐसा लगता है कि हम इसके साथ ही जीना पड़ेगा. अभी तक का जो माहौल है उसके हिसाब से हमें लगता है कि सरकार कर्फ्यू भी लगाएगी, लॉकडाउन भी करेगी. अब यूपी में अभी फैक्ट्रियां चल रही हैं और उन्होंने कहा कि आप फैक्ट्री पे काम करो और साथ में लेबर को अपने साथ लगा के रखो. उसको अगर एक बार फिर वो पिछले साल वाला हाल हुआ तो मुश्किल हो जाएगी. तो सरकार भी जहां तक हमें समझ में आता है कि वो लॉकडाउन और कर्फ्यू के रहते काम को नहीं रोकने जा रही. अब सवाल ये उठता है कि काम भी करना है और जान भी बचानी है. अब जान किसकी बचानी है? अपनी, जो फैक्ट्री का ओनर है, स्टाफ है, विजिटर है, वर्कर्स है, जो भी है, सबसे पहले जान है और जहान है. उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम
अगर हम फैक्ट्री चला रहे हैं, मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए भी फैक्ट्री तो हमने बंद कर दी है। मैंने कहा चलो आपने फैक्ट्री बंद कर दी है कोई बात नहीं, पर कल अगर आप खोलोगे तो आप क्या करो, कहते हैं हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। मैंने कहा बस यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपस में कि हम लोग क्या करें, मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, हम सारे एक दूसरे से समझें, सीखें। इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाएं कि हम भी सुरक्षित रहें, काम करने वाला भी सुरक्षित रहे और हमारे प्रेमिसेस फैक्ट्री में आने वाला भी सुरक्षित रहे, उसकी भी जान सेफ हो, हमारी भी हो। हम उसके लिए बैठ के डिस्कस करने जा रहे हैं और हम एक दूसरे की जो भी राय होगी उसके अंदर एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और हम समझेंगे प्रैक्टिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या पॉसिबल है। हम लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, काम चल रहा है, लॉकडाउन भी हुआ है, फिर भी जितना टाइम मिलता है हम काम कर रहे हैं। इसके अब EPCH ने भी पिछले साल कुछ स्टैंडर्ड फॉर कंप्लायंस फॉर पैथोजन कंट्रोल वर्कशॉप के स्टैंडर्ड बनाए थे, उसके ऊपर भी विचार करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को छोड़ के कि सबको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, या हमारे को ये कॉमन जो सब चीजें हैं उसको अलग रखते, वो तो करनी ही है, उसको वो तो उसके बिना तो गुजारा नहीं है। पर इससे हट के हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ये मेरी कमल जी से बात हुई है, अवधेश जी से भी हुई है, राजेश जैन से भी हुई है, प्रदीप जी से हुई है, चेयरमैन साहब से हुई है, सबने अपने अपने कुछ ऐसे पॉइंट रखे हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं। अगर मैं वैसे कर रहा हूं, आपको ठीक लगे, आपको लगे हाँ ये अच्छा है, तो आप भी करें। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर क्योंकि प्रोडक्ट वाइज और नंबर ऑफ पर्सन वाइज ये प्रोटोकॉल चेंज होते हैं और हर कंप्लायंस में ही ऐसा है। कोई भी आपका कंप्लायंस इशू है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट, आपकी फैक्ट्री, आपके नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से सारे के सारे जो प्रोटोकॉल चेंज हो जाते हैं, पर जनरल जो है वो सब जगह एक ही स्टैंडर्ड होता है। तो मैं सबसे पहले अवधेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं, अवधेश जी आप इसके बारे में ब्रीफली 2 मिनट में या 3 मिनट में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज आप अपने व्यूज रखें। पर अवधेश जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि सभी लोग इस कोविड काल में स्वस्थ रहें, और जो प्रोटोकॉल है वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं जो आगे आने वाले समय में बताएंगे। मैं तो सिर्फ सकारात्मक बात करता हूं, पॉजिटिविटी की बात करता हूं। मैंने एक वर्ड सुना था बचपन में कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिन लोगों ने मन को जीता उन्होंने कोविड को भी जीत लिया, और जिन लोगों को हारा वो कोविड से भी हार गए। 2 बातें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इस वेबिनार में हैं, कि जब हमें इसके साथ जीना है तो इससे डरना नहीं है, इससे मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब से 6 साल पहले जिस समय मेरा वजन 123 किलो था, तो डॉक्टर चौबे जिन्होंने गडकरी जी की सर्जरी की थी, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा साहब हम आपकी खाने की नली काट देंगे और आप खाना कम खाएंगे, पतले हो जाएंगे, 2.5 लाख रुपए इसकी हम फीस लेंगे। मैंने कहा कि मैं इनसे नली कटवा के 2.5 लाख रुपए दूं, इससे मैं डाइट प्लान ही न ले लूं, अपने आप को पतला ना कर लूं। तो मैंने अपना 24 किलो वजन कम कर लिया। मेरा कहने का भावार्थ सिर्फ इतना सा है कि जब कोविड है और हमें इसके बचाव के सारे तरीके मालूम है, तो उन तरीकों के साथ ही हमें इसको काम को करना है। जैसे कि मैं अपनी फैक्ट्री में एक सिस्टम मैंने बनाया हुआ है कि मेरे गेट पे चेकिंग होती है। अगर कोई भी आदमी जुकाम या बुखार से पीड़ित है तो हम उसको वापस करते हैं, 4 रोज तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अगर उसका बुखार नहीं उतरता है तो उसकी कोविड टेस्टिंग कराते हैं और उसको ये कहते हैं भैया इस समय की तेरी तनख्वाह सारी तुझे मिलेगी, तो ये घबरा के पैरासीटामोल खा के ये मत बता कि तुझे बुखार नहीं है, जो कि आजकल हर आदमी को पता है कि मैं पैरासीटामोल खा लूं और मेरा बुखार खत्म हो जाएगा, मालिक मुझे निकालेगा। तो सबसे पहले हमें अपने जो आर्टिजन्स हैं, अपने जो एम्प्लॉय हैं, उनके प्रति पूर्णतः दयावान बनना पड़ेगा कि हम इनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं और इनको हम क्या क्या सहूलियतें देते हैं, और उनको भी उत्साहित करना पड़ेगा कि वो वैक्सीनेशन भी कराएं
और सारा कोविड के नियमों का पालन करें। कोविड आएगा भी और चला भी जाएगा। अगर हम उन लोगों की पूरी तरीके से मदद करेंगे तो हमारे वर्कर हमारे साथ खड़े होंगे। किसी भी चीज को बंद करना किसी चीज का भी सोल्यूशन नहीं है। पिछली दफा गवर्नमेंट ने, सरकार ने बंद करके देख लिया, सिवाय भुखमरी और निराशा की कोई दूसरी चीज पैदा नहीं हुई। आज हमारे पीएम भी और सीएम भी दोनों ये कहते हैं कि आपको काम करना है, इंडस्ट्री को चलाना है, लोगों को पलायन नहीं करने देना है, लोगों को जीवित रखना है। इसके विषय में ईपीसीएच ने, मुझे याद अच्छी तरीके से पड़ता है कि पिछले साल भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था कि कोविड काल में आप किस तरीके से अपनी फैक्ट्रियों को सर्वाइव कर सकते हैं और चला सकते हैं। मैं ये प्रार्थना करूंगा अपने डीजी साहब से, अपने चेयरमैन साहब से, अपने वाइस चेयरमैन साहब से, मैं दोबारा ये कहूंगा कि उस प्लान को दोबारा हम लोगों को पूर्णतः समझाया जाए, हमारे निर्यातकों को समझाया जाए कि भाई कोविड में हम अपने बायर्स को इस प्रकार से माल भी भेज सकते हैं और इन नियमों का पालन करके अपनी फैक्ट्री भी चला सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर हम मर्सिडीज लाते हैं तो उसके चलाने का तरीका भी आता है, कोविड आया है तो उससे बचने का तरीका भी आएगा, बुखार भी आएगा, लेकिन बुखार से हमें बचने का तरीका भी आना चाहिए। तो सब लोग आशावान रहें, ये कोविड चला जाएगा। अगर हमने इस समय काम खो दिया तो दोबारा काम वापस नहीं आएगा। अपनी जान को भी बचाना है। जो लोग शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन लोगों को प्रिकॉशन के साथ, चाहे वो मालिक हैं चाहे एम्प्लॉई है, काम करना चाहिए। यही मेरा सब लोगों से प्रार्थना है। और डीजी साहब से मेरा अनुरोध है कि जो कोविड के लिए एक नीति बनाई थी, अब उसकी जरूरत है, हमें वो नीति दीजिए ताकि हम अपने निर्यात को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गिव मी द टाइम। थैंक यू अवधेश जी, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके बताया कि अगर कोई वर्कर पैरासीटामोल या क्रोसिन लेके आ जाता है तो उसका टेम्परेचर नहीं आएगा, वो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में है, वो गरीब आदमी की मजबूरी है और आप उसको फिर भी उसके पैसे देते, तनख्वाह देते हैं। बहुत अच्छा आपका ये व्यवहार है और आप इसके लिए वैसे भी मुरादाबाद में नहीं पूरे यूपी में मशहूर हो, आप लोगों का भला चाहते हो और भला करते हो। थैंक यू वेरी मच। मैं कमल सोनी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमल जी आप अपनी फैक्ट्री में ऐसा क्या अलग से कर रहे हैं जिससे हम उससे कुछ सीखें और इंडस्ट्री को बता पाएं। कमल जी प्लीज। नमस्कार एवरीवन, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। माई सेल्फ इज कमल सोनी। जैसा कि हमारे डीजी सर राकेश जी ने कहा कि द शो मस्ट ऑन, हम लोग जो है बिजनेस को कंटिन्यू हमें रखना है और 100% रखना है। इस वक्त हमारे सामने 2 पॉइंट हैं। एक तो हम लोग अभी क्रिसमस की शिपमेंट्स को, जो ऑर्डर्स आए हुए हैं उनको शिप कर रहे हैं, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त हमेशा हर साल क्रिसमस की जो हॉलीडे सीजन की शिपमेंट्स होती हैं। और सेकेंडली हमें ये देखना है कि जो हमारे आने वाले आगे बिजनेस के जो टर्म्स हैं, जैसे 6 महीने या 8 महीने के हम आज जो सैम्पलिंग कर रहे हैं या जो हम डेवलपमेंट्स करके आगे भेज रहे हैं, वो भी हमें कंटिन्यू करना है। क्योंकि हम आज को नहीं सोच रहे हैं, हम आने वाले अगले साल को सोच रहे हैं कि अगले साल हमारा बिजनेस कैसे कैरी ऑन हो। क्योंकि हम एक इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं और अगर हम लोग कहीं भी निगेटिविटी अपने बायर्स को या इंटरनेशनल मार्केट में देते हैं तो उस निगेटिविटी से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा जो शो है, जो हमारा बिजनेस है, वो कंटिन्यू हमें पॉजिटिव नोट्स के साथ आगे बढ़ना है। हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री में कुछ चीजें ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं पिछले 1 महीने से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस वक्त हमें अपनी फैक्ट्री में सर्विलांस टीम बनानी है। हम लोगों ने अपनी सर्विलांस टीम में करीब 10 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें हमारे एचआर के लोग हैं, हमारे जो बहुत पुराने सुपरवाइजर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, हमने उन लोगों को रखा। प्लस मैं खुद भी उसमें डे टू डे बेसिस पे इन्वॉल्व हूँ। सर्विलांस टीम में हम ये लोग कर रहे हैं कि जैसे कोई आदमी, आज कोई वर्कर है वो छुट्टी करता है, तो हम लोग वो जिस फ्लोर पे होता है उसके सुपरवाइजर्स या उसके और जो आसपास के लोग काम करने वाले हैं उनके थ्रू चेक करते हैं भी ये क्यों नहीं आ रहा या क्या रीजन है। अगर हमें पता चलता है कि इसको कल बुखार था या परसों बुखार था, तो हम लोग उसका एंटीजन टेस्ट कराते हैं पहले, फैक्ट्री एंट्री करने पहले 3 दिन हम उसे छुट्टी देते हैं और एंटीजन टेस्ट कराने के बाद ही हम उसको एंट्री देते हैं। तो सेकेंडली ये पॉइंट होता है कि अगर कोई हमारा, सपोज करिए ऑफिस का स्टाफ या वर्कर कोई पॉजिटिव आ जाता है, तो हम उसको पूरी जो कंसल्टेंसी है, हम लोगों ने 2-3 डॉक्टर से यहाँ पे करा हुआ है, मेडिसिन उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं टाइम टू टाइम। मैं पर्सनली भी फोन उन लोगों को करता हूँ। और दूसरा हमने ये किया कि जैसे हम 15 डेज की लीव देते हैं, तो हमने वो लीव सब 21 डेज की कर दी है। इन केस कोई अगर पॉजिटिव आता है तो 21 दिन हम उसको सैलरी पेड पे लीव दे रहे हैं, ताकि 14 डेज उसके वैसे हो गए और 7-8 दिन उसको फ्यूचर में जो भी लीव करनी है। तो उससे एक बहुत पॉजिटिव नोट्स आया। दूसरा, कोई भी जो छुपा रहे थे अभी तक लोग,
उन्हें लगता है कि नहीं, ओनर्स हमारे साथ हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आई है कि भाई नहीं, हमें टाइमली मेडिसिन मिल सकती है या हमें एडवाइस मिल रही है। तो ये काफी बड़ा पॉइंट है जो हमें आगे देखना है और इसको कंटिन्यू करते रहना है। और हम लोग इसके अंदर एक चीज और भी कर रहे हैं कि जनरली जो आपका जो कोई आदमी बीमार पड़ता है सपोज करिए, तो हम कंटिन्यूसली उसके टच में हैं रेगुलर। जो ये सब चीजें हैं, दूसरा टेस्ट आप जो है फीवर चेक करते हैं, ये सब चीजें तो एक जनरल पिछले साल भी ईपीसीएच के माध्यम से एक वो पूरा वो सेमिनार भी किया गया था, बताया भी गया था, वो तो एक प्रिकॉशनल है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा रिस्क पॉइंट है वो यही है कि वर्कर बेचारा जो झूठ बोल के कई बार आ जाता है। और एक हम लोगों ने अपनी जो कैपेसिटी है, जो हमारे हॉल्स की कैपेसिटी है, सपोज हमारे एक हॉल में 50 लोग पहले काम कर रहे थे, वो अब हमने जो है उस हॉल में अब जो है 30% जो लोगों का कर दिया है। तो ये 2-3-4 पॉइंट है जो हम इमीडिएटली इंटरनल अपनी फैक्ट्री के अंदर ले रहे हैं। बाकी पॉइंट्स जो अभी अवधेश जी ने बताए, मल्होत्रा साहब ने बताया, तो बाकी जो जो और लोग कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है कि आप लोग सर्विस लाइज टीम जरूर बनाइए, फॉलो अप करते रहिए। कोई अगर छुट्टी कर रहा है तो उसको जरूर चेक करिए कि वो कोई शादी में तो नहीं गया था या वो बीमार तो नहीं था, क्योंकि शादी में जब लोग जा रहे हैं तो वो भी काफी वो लेके आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव। जो कुछ लोग इलेक्शन में गए, जैसे हमारे यहाँ भी कोई इलेक्शन में गए, तो हमने 10-15 लोगों को अभी 4 दिन की छुट्टी दे दी। हमने कहा नहीं, अभी आप इलेक्शन कर रहे हो, आप 5-6 दिन बाद फैक्ट्री ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमल जी, थैंक यू वेरी मच। आपका ये सर्विलेंस वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स वेरी यूजफुल, क्योंकि इसी से ही किसी वायरस की किसी के थ्रू एंट्री हो सकती है। आपने उसके ऊपर नजर रखनी शुरू करी, इट्स ए गुड पॉइंट। और मैं समझता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री इसको भी, जैसे आपने ये भी साथ में रखा कि हम लोग उनको 7 एडिशनल छुट्टियां भी दे रहे हैं, अगर वो जैसे अवधेश जी बता रहे हैं कि वो भी उनके पैसे, उनको तनख्वाह पूरी दे रहे हैं, बहुत इट्स ए गुड जेस्चर और आई अप्रिशिएट। और इंडस्ट्री जरूर इस चीज को फॉलो करेगी। अब मैं राजेश जैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी फैक्ट्री को भी वही कंप्लायंट फैक्ट्री चलाते हों, तो वो उनके इसमें क्या एडिशनल ऐसा कुछ है, मास्क और ये चीजें सैनिटाइजेशन से हट के क्या वो कर रहे हैं। रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, डीजी सर और सारे एक्सपोर्टर्स, 13 महीने पहले जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस समय हमें पता नहीं था कि हमें हमारा अगला कदम क्या होगा अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। धीरे धीरे नियम कानून बने, हमें बताया गया और हमने कोविड के जितने भी नियम थे उनका पालन करना शुरू किया। और ये पूरा पिछला साल, पूरे 13 महीने हमने उन्हीं नियमों के तहत अपनी फैक्ट्री चलाई। 15 दिन पहले जब ये कोविड की दूसरी वेव शुरू हुई, तो हम में से कईयों ने अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को, दोस्तों को खोया। त्राही त्राही मच गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई है। रोना ही आ रहा था, मतलब इसलिए डीजी सर को मैंने रिक्वेस्ट करी और मैं डीजी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि न केवल ह्यूमैनिटी वो सब चीजों से बढ़ करके है कि उन्होंने तुरंत ही मेरी बात मान ली और अर्जेंटली इस वेबिनार को कॉल किया। क्योंकि हमने ये सोचा कि क्या हम फैक्ट्री चलाएं या बंद कर दें, क्योंकि बिजनेस से बड़ा हमारे वर्कर, हमारे स्टाफ और हमारी जान है। लेकिन चूंकि बिजनेस भी करना है, क्योंकि हमारे कमिटमेंट फॉरेनर्स से है, विदेशी लोगों से है, तो बिजनेस भी करना जरूरी था। तो एक बार यह जरूरी हो गया था कि क्या हम दोबारा से एक बार जो कोविड प्रोटोकॉल है, कहीं हमसे कोई छूट तो नहीं रहा। हो सकता हम उतना नहीं जानते हो, तो डीजी सर के नेतृत्व में कोविड प्रोटोकॉल बना था। एक बार उसका दोबारा विवेचन करने का समय आ गया है कि हम सभी एक्सपोर्टर उसका पालन करें। इसलिए यह बहुत जरूरी वेबिनार था। मैं कुछ चीजों का पिछले 15 दिनों से भोगने के बाद मैंने जो पालन किया है, डेफिनेटली हम लोग जो नियम कानून है उसका पालन करते हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके जैसे जूतों को भी सैनिटाइज कराते हैं। उसके बाद हम फैक्ट्री को 3 बार सैनिटाइज करते हैं, एक सुबह, एक लंच के बाद और एक शाम को। हमने बिल्कुल जो वर्कर्स हैं उनको आधा कर दिया, उनको बैठाने की जगह बढ़ा दी हमने। उनको जैसे पहले 8 जने बैठते थे, वहां 4 जने ही बैठते हैं। जब भी कोई लोरी, कोई सामान, कोई सप्लायर लेके आता है, तो हम वो एक फोग मशीन लेकर के पहले जो बंद कार्टन है उसके ऊपर में वो चलाते हैं, जिससे कि अगर उसके अंदर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। तो इस तरह से इन कुछ नियमों का हमने अभी पालन शुरू किया और हमें ऐसा लगा कि शायद कुछ अगर चीजें हमसे छूट रही हैं, तो आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा कुछ और पॉइंट्स हमें पता चल जाए, जिससे कि हम लोग उनका पालन कर सके। हमने अपने सीनियर स्टाफ को अल्टरनेट डे आने के लिए कहा है कि कम से कम एक टाइम में एक ही सीनियर प्रेजेंट रहे, क्योंकि अभी वेव बहुत
खतरनाक चल रही है। और हम अपने भी सारे स्टाफ को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि कमिटमेंट है, ऑर्डर्स पूरे करने हैं, लेकिन अपनी जान बचाते हुए। एक बार फिर से मैं डीजी सर का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मल्होत्रा सर, जितना आपका धन्यवाद करूं उतना कम है। कमल सोनी जी, अवधेश जी, मुछाला साहब, रावत साहब, और जितने भी एक्सपोर्टर अभी सुन रहे हैं, वो डेफिनेटली अपना ध्यान रखें, अपने स्टाफ का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और वर्कर्स का ध्यान रखें। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरीके पॉइंट लिया कि आप कार्टन जो माल आता है उसको भी पहले सैनिटाइज करते हैं, और उसके अंदर जैसे आपने सीनियर स्टाफ का अल्टरनेट डेज पे आप उनको बुला रहे हैं, इससे थोड़ा डिस्टेंसिंग फर्क पड़ता है। गुड पॉइंट। और मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के लोग जैसे अवधेश जी के, सोनी साहब के और आपके अलग से पॉइंट हैं, तो वो इंडस्ट्री के सामने आए हैं, जिसको जो भी ठीक लग रहा है वो नेचुरली पॉइंट नोट कर रहा होगा, उस तरीके अपनी इंडस्ट्री में उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। मैं प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूं अगर वो कुछ शेयर करना चाहें। प्रदीप जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राकेश कुमार, चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये बहुत सही समय पे वेबिनार हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हम वेस्टर्न रीजन में काफी इंटरेक्शन कर रहे हैं और लोगों का कहना हुआ कि सर इतनी खराब हालत में आप हमें क्या ज्ञान देंगे। तो हमें थोड़ा सा समझाना पड़ा कि देखो भैया, ये एक हाउ टू प्रिवेंट कोविड-19 इन्फेक्शन का एक वेबिनार है, आप उसके ऊपर जोर दीजिए। मैं अभी देख रहा था लिस्ट, हमारे वेस्टर्न से काफी लोग जुड़े हैं, तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि हम कैसे आगे बढ़े। थैंक यू जी। जो कि आज की वेबिनार है, इसके अंदर मैं जहां तक मेरी सोच है कि अभी तक तो हम जो भी कंप्लायंस, फैक्ट्री कंप्लायंस, बड़े बड़े स्टोर, बड़े बड़े इंपोर्टर्स, बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनीज मांग रहे थे, चाहे BSCI है, सेडेक्स है, सिटी पैट है, US चेन है या स्मेस्टा है। अब ये भी जल्द ही, मेरे कुछ बायर से बात हुई है, पैथोजन ऑडिट का भी वो आगे प्रोविजन डाल रहे हैं। प्रोविजन मीन्स कि मैंडेटरी करेंगे। कुछ बड़े स्टोर इस तरीके के ला रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि उनकी BSCI में ही ये कोविड कंप्लायंस एक एडिशनल चैप्टर साथ में ऐड हो रहा है, उसके लिए EPCH ने पिछले साल ही इस चीज की तैयारी कर दी थी। तो उसको हम, जैसे अवधेश जी और सोनी साहब ने कहा, इसको मैं भी DG साहब से और चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसको दोबारा इसके ऊपर विवेचन करें, इसको डिस्कस करें, इसको विचार करके कैसे लाना है, कैसे लागू करना है, उसको हम अलग से कर लेंगे। और मैं भी इस चीज को आपको एग्री कर रहा हूँ और इंडोर्स कर रहा हूँ कि हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट EPCH और उनको बोलेंगे कि इसको आगे करें। अब आज की जो बात है, अगर मैं उसी मुद्दे पे वापसी आऊं, तो प्रोटोकॉल और सिस्टम सारे वही हैं। हम लोग क्या फैक्ट्री में कर रहे हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं हम अपने कंप्लायंस के जो भी सिस्टम है उसके अंदर। हम प्रोटोकॉल क्या क्या करें जिससे हम लोग खुद मालिक, ऑनर, डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, उसके बाद में हमारा स्टाफ, सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, वर्कर, विजिटर, कोई भी है, वो किस तरीके सुरक्षित रहे और इस बीमारी को हम बचा के, एक दूसरे को बचा के चलें और काम करें। पहला जो कि समझ में कहा जाएगा, जनरली मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं कि प्रोटोकॉल की जो सिस्टम है, मैं अभी राजेश जी को बोलूंगा, मैंने कुछ अपनी फैक्ट्री की, हाँ मैं पहले आपको बता दूं कि जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे सोनी साहब ने करी है, अवधेश जी ने करी है, राजेश जैन ने करी है या मैं कर रहा हूं, हम उसको पहले अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं ला रहे या आपको नहीं बताने जा रहे जो पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ इसमें कोई हो तो आप बिल्कुल किसी से भी बात करके, डिस्कस करके हमारे से बात कर सकते हैं। मैं राजेश जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो कुछ मैंने अपनी फैक्ट्री के फोटोग्राफ भेजे हैं उसको शेयर करें, मैं ताकि उसको 1 by 1 बता सकूं। ये सर आपको स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू राजेश रावत। ये प्रोडक्शन प्रोटोकॉल ड्यूरिंग पैंडेमिक में जो आपने ये बनाया है, इसके अंदर
मेरी, कमल सोनी, अवधेश जी, राजेश जी। नंबर पॉइंट 1, हमारी फैक्ट्री में हमने ये 3 कलर के मास्क बनाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये है वर्कर्स, किसी के पास 500 हैं, जैसे सोनी साहब के पास मोर देन 1000 है, 1200 के करीब हैं हमारे पास में जितने भी वर्कर्स हैं। हमने ये देखा है वर्कर्स को अपनी दिहाड़ी, अपने पैसे, अपने टाइम के अलावा इन चीजों में कई बार वो कम ध्यान देते हैं कि एक मास्क को 3-3, 4-4 दिन लगाए रखते हैं। हमने उनको 3 कलर के मास्क बना के दे दिए हुए हैं और हर एक को फिक्स है कि मंडे को इस कलर का सबने पहन के आना है, ट्यूसडे का दूसरे कलर का पहन के आना है, वेडनेसडे को तीसरे कलर का पहन के आना है, फिर थर्सडे को फिर पहले वाला, ऐसे उसकी रोटेशन में हम लोग उनको मास्क दे रखे हैं। और ताकि वो उसको धोने का भी टाइम मिल जाता है उसके अंदर, या अगर वो उसने नहीं भी धोया मान लो, तो भी 3 दिन बाद मेरे ख्याल में उसके अंदर थोड़ा उसका वो जो इम्पैक्ट है वायरस का कम हो जाता है या कम हो जाना चाहिए। ये हमारी सोच है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो अपनी फैक्ट्री में इस कलर वाइज मास्क दे रखे हैं और सबको हमने अपने बना के उनको हैंड ओवर कर दिए हैं। जैसे स्कूल की ड्रेस है ऐसे हमने मास्क की ड्रेस डेज वाइज कर दी हुई है। राजेश प्लीज पॉइंट 2 देखें। हमने इसके बाद में उस मास्क के ऊपर जो ये डिस्पोजेबल मास्क मिलता है, इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, कहीं 1 रुपए 2 रुपए या 2.5 रुपए तक की वैल्यू है इसकी। उस मास्क के ऊपर एंट्री के वक्त एक दूसरा मास्क उसको दिया जाता है डिस्पोजेबल, वो उसको उसके ऊपर लगा के ही फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है और वो सारा दिन उसको लगा के रखेगा और जाने के वक्त वो उसको डिस्पोज करेगा और तब वो जाएगा। ताकि जो नीचे वाला मास्क है, क्योंकि आजकल आप अभी देख रहे होंगे टीवी पे भी, ये हमने पहले ही कर दिया था, जबकि आजकल टीवी में डबल मास्किंग का भी सब कह रहे हैं कि डबल मास्किंग करिए तो ही आप सेफ रह सकते हैं। ये हमने अपनी समझ से इसको पिछले महीने से ही शुरू कर दिया डबल मास्किंग। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे उस साइड में कलर जो गार्ड है वो कलर लगा, वो मास्क के हिसाब से उनकी चेकिंग करता है और उनको सबको मास्क प्रोवाइड करता है। राजेश जी पॉइंट 3 पे आइए प्लीज। ये हमने अपने यहाँ, जैसे मिस्टर सोनी ने भी बताया, हमने कोविड कंप्लायंस कोविड ऑफिसर बनाए हैं, कोविड ऑफिसर जिनको एक अलग अलग कलर की ड्रेस दे रखी है। उसके अंदर वो उसका काम है फ्लोर वाइज हमने रखा है, पर 50% के बाद में हम एक कोविड ऑफिसर बना देते हैं जिसको हम कोविड ऑफिसर कहते हैं, कंपनी का कोविड ऑफिसर। और उसका काम है जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कंपनी में कोविड के, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग भी चेक करते हैं, मास्क भी चेक करते हैं, एंट्री के टाइम भी चेक करते हैं। उनका हर वक्त ये काम है। अपने काम के साथ साथ उनको ये भी काम करना है। ड्रेस देने से ये होता है कि एक उसका वैल्यू बनती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, इस फ्लोर की उसकी जिम्मेवारी है, उसने ये सब चीजें देखनी है। ये हम तीसरे पॉइंट में हम अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं। जैसे सोनी साहब ने सर्विलेंस का बताया है, ये उससे लगभग मिलता जुलता है। हम अंदर भी फैक्ट्री कर रहे हैं, वो बाहर भी कर रहे हैं। मेरे को अच्छा लगा है, हम उसको भी अपने कोविड ऑफिसर की ड्यूटी लगाएंगे कि जो लोग छुट्टी से वे गए हैं उसके ऊपर भी नजर रखें, वो क्यों छुट्टी पे है, बीमार है या इसके अलावा क्या कारण है। और मेरे को ये सोनी साहब का पॉइंट अपने से बहुत अलग लगा है और मैं इसको अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करूंगा। राजेश राव जी प्लीज पॉइंट नंबर 4। राजेश जी स्क्रीन शेयर करें। हाँ, ये हमारे यहाँ विजिटर के लिए है। ये कोविड ऑफिसर जो हमारा खड़ा हुआ है जिसके पहले AHPL लिखा है, एशियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम है, जो गार्ड है ये इसका काम है कि जो भी विजिटर आउटसाइडर है जब फैक्ट्री में आएगा, हमने एक प्रिंट करके उसको एक डूज एंड डोंट दे देते हैं कि आप कहीं घूमेंगे नहीं, आप किसी से मास्क उतारे बिना, और उसको मास्क भी देते हैं, उसके मास्क लगे के ऊपर हम अपना मास्क देते हैं। वो मास्क उतारेगा नहीं, अपनी जहां सीट है वहीं बैठेगा, फोन पे बात करेगा। डूज एंड डोंट अपने जो भी हमारे फैक्ट्री के काम के हिसाब से है वो उसको लिखित रूप में दिए जाते हैं, ताकि वो जब तक बैठा है उसको पढ़े या पढ़ के अंदर आए, ताकि उसको मालूम पड़े कि भाई ये अंदर एंटर करने के बाद में
ये डूज एंड डोंट्स है, उसने ये करना है और ये नहीं करना। ये हम विजिटर्स के लिए है, चाहे वो वेंडर है, सप्लायर है, कोई भी है, एंट्री के वक्त हम उसको डूज एंड डोंट दे देते हैं। राजेश जी नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। उसके बाद हमने साइड पे जो बैठे हुए हैं उसके अंदर हार्डबोर्ड के पार्टीशन लगा दिए एमडीएफ के, और पीछे जो हमने पीवीएस के कर्टन दे दिए हैं, ताकि उधर की इधर और वो पीछे की एक दूसरे से इनका जो डिस्टेंसिंग भी होगी, और अगर कोई, एक तो इसमें काम में कमी नहीं आई, उल्टा काम बढ़ा है, क्योंकि आपस में बातचीत भी इनकी कम हो गई है। अब थोड़ी डिस्कशन कम होती है, काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और उनको उठ के बार बार इधर उधर जाने का भी नहीं होता। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हमने इनको 6 फीट का डिस्टेंस दे दिया, साइड से भी, पीछे से भी, और बीच में ट्रांसपेरेंट पार्टीशन है, इस तरफ हार्डबोर्ड का। वो जैसे फैक्ट्री के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से आप भी कर सकते हैं। और इसमें हमें लगा कि हम काफी सफल रहे हैं इस कोविड से अपनी फैक्ट्री में एंटर करने को हमने नहीं अभी तक नहीं करने दिया। विजय जी नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। हाँ, ये उसी पे आधारित है कि इसके आगे पीछे भी हमने 6 फीट का डिस्टेंस दिया, साइड पे हमने हार्डबोर्ड लगा दिया। साइड पे अगर हार्डबोर्ड लगा हुआ है तो अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा कम भी है तो भी चल सकता है। तो आगे पीछे कम से कम आपको 6 फीट का डिस्टेंस हो, बीच में वो ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई हो, जिसके अंदर इधर के सांस या इधर का वायरस उधर ना जा सके। अगर किसी को है, पहली बात तो है नहीं, होता भी है तो किसी को दूसरे पे वो चीज नहीं लगनी चाहिए। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जो इसमें इसी को मेरे ख्याल पॉइंट बी बनाया हुआ है। राजेश जी नेक्स्ट प्लीज। इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम करते हैं। हम प्रोडक्ट वाइज, जैसे राजेश जी ने बोला कि हम प्रोडक्ट को सैनिटाइज करते हैं, उनके मेरे को उसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन थी कि कुछ प्रोडक्ट खुले आते हैं जिसके अंदर हम किसी प्रकार का कोई सैनिटाइजर या कोई फोगिंग नहीं कर सकते। उसके प्रोडक्ट की शाइनिंग और उसके क्वालिटी में या उसकी फिनिशिंग में फर्क आ जाता है। हमारे सिस्टम में है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो 3 दिन पहले माल आया था वो पहले पैकिंग में जाएगा। थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कोशिश ये होती है कि कम से कम 96 घंटे तक लाइन में अगर चले जाएंगे तो अपने आप उसका नंबर 4 दिन बाद आएगा, तो प्रोडक्ट भी सेफली और बिना किसी वायरस के 4 दिन बाद पैकिंग में आएगा। नंबर दूसरा है हमारे यहाँ सैनिटाइजर्स में, हम बाथरूम में क्या करते हैं कि एक टाइम पे एक व्यक्ति बाथरूम जाता है, और उसके अंदर हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जब कोई एक गया है तो वो उसके बाद जब आएगा तो दूसरा जाएगा, और उस बाथरूम में वो हाथ भी धो के आएगा और साथ में साबुन से उस नल को भी धो के आएगा जिससे उसने खोल के नल चलाया है। ये बाथरूम। इसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन कर रखी है मूवमेंट की, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मूवमेंट वाले लोग हैं उसके अलावा कोई अपनी सीट से उठ के इधर उधर जाने में फालतू में घूमा घामी नहीं करने देते। लंच ब्रेक में पहले कोविड के टाइम से पहले कुछ लोग 10-20% लोग लंच के लिए फैक्ट्री से बाहर जाते थे। हमने उसको टोटली बंद कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार एंटर कर गया वो तभी बाहर जाएगा जब फैक्ट्री बंद होगी या छुट्टी होगी। लास्ट इसमें है कि हमने तकरीबन डिस्पोजेबल सबको दे दिए हैं, या उनको परमानेंट उनका एक ग्लास दे दिया है चाय या पानी के लिए, वो अपने लॉकर में रखे, उसको यूज करें, ताकि दूसरे के पास ना वो उसको कोई चाय वाला उसके पास जाएगा ना उसको पानी वाला जाएगा। खुद ही उठे, अपना गिलास ले, अपना पानी पी, अपने लॉकर में रखें और अपनी सीट पे आगे काम करें। ये कुछ चीजें थी जो हम लोग अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं। और अब इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि कुछ और पॉइंट अगर रह गए हों तो अब आप ये बताइए कि ये कोई ऐसी चीज में आपको, मैं जो पैनल पे उनसे भी हैं और बाकी लोग जो इस टाइम है वो देख रहे होंगे कि सारी चीजें पॉसिबल हैं, वर्केबल हैं, और हम लोग इसको कर रहे हैं। अब मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो जो EPCH के प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर अगर वो उसको स्क्रीन शेयर करें तो हम पॉइंट वाइज उसको हम डिस्कस कर ले। मेरे ख्याल में जो हम इसमें अभी तक कर रहे थे, हमने 4-5 पैनलिस्ट में जो हमारी फैक्ट्री में कुछ नई चीजें भी आई हैं और लोगों को समझ में आई, मेरे को भी कोई नई चीज मिली है, तो हम बाकी जो एक हमारे स्टैंडर्ड है उसको आप अगर स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट सर।
मल्होत्रा जी, जो आपने बताया दैट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड मोस्ट अचीवेबल। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भाई स्काई रॉकेटेड कोई साइंस है या कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। कॉस्ट उतनी है जितनी मतलब रीजनेबल है, और आपका जो एक्सपीरियंस है आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक। बाकी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, सब इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन इसके चलते अभी ये जो हमने प्रोडक्शन प्रोटोकॉल एक बनाया था वो उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? देखिए जी, जो भी हमने अपनी फैक्ट्री में करा है, हमें ये लगा है कि मुझसे काफी बचाव रहा है, तो हमें नेचुरली इंडस्ट्री को हमने शेयर करा है और सबने करा है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड में सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल प्लान फॉर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये नेक्स्ट इसका स्क्रीन शेयर करें। सर, देख पा रहे हैं सर आप? हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर सबसे पहले आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले ये सोच के चलते हैं कि मैनेजमेंट इसमें कमिटेड हो। मैनेजमेंट अगर ये सोचता है, चाहे ओनर है, प्रोप्राइटर हैं या सीनियर डायरेक्टर्स हैं या उसके सीनियर स्टाफ है, उसको इस चीज के सोच के चलना है कि हम लोग इसके, ये कोई एडिशनल खर्चा नहीं है, इसके अंदर ऐसा कोई फालतू का कुछ करने का नहीं है। ये इतनी जरूरी, जितनी प्रोडक्शन जरूरी है उससे ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी अपने स्टाफ की सबकी जरूरी है। तो हमें इस चीज की कमिटमेंट है। हमें इसको एक राइटिंग में, ब्लैक एंड व्हाइट में एक सिस्टम बनाने पड़ेंगे, उसको लिखना पड़ेगा कि हम, जैसे हमने आपको बताया कि हम ये करते हैं, तो आप लोग भी अपनी फैक्ट्री में ये कंट्रोल प्लान फॉर मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के लोग बैठ के इसको डिस्कस करें और सबको बताएं उसको। कि सबसे पहले जैसे इन्होंने बोला है कि आप मीटिंग्स करें, डिस्कस करें, रिकॉर्ड रखें। जब भी आप लोग इस चीज पे कल ऑडिट के लिए जाएंगे तो आपके पास में इस चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास में मॉक ड्रिल की, ट्रेनिंग की, सब चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। Organization to try maintain digital record covering all applicable requirements of the COVID protocols. Organization to carry out regular frequently to ensure that its management system and its implementations are appropriate and up to date. आपको जैसे हम फायर की ड्रिल करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स रखते हैं कि हमने क्या करा, कैसे करा और किस दिन करा, डेट वाइज। इसके अंदर भी आपको उसके हिसाब से सिस्टम बनाने हैं। All employees and visitors to download आरोग्य, और हमने अपने सारे स्टाफ को, उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उस पर नजर रखें कि आपके नजदीक तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा हुआ या आया हुआ जिसको ये कोविड की प्रॉब्लम है। एंड मैनेजमेंट टू एनकरेज एंड इफ पॉसिबल फैसिलिटेट वैक्सीनेशन एम्प्लॉय एंड वर्कर। हम लोग भी और आप लोग भी ये कोशिश करें कि जो भी हमारे स्टाफ है उसको इस चीज की गाइडेंस दें, उनको समझाएं कि वैक्सीनेशन करवाना है और कैसे करवाना है। उनको ऑनलाइन उसकी बुकिंग करके दें, उसको बताएं किस जगह पे उसे कितने बजे जाना है। ये मैनेजमेंट इस चीज के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए काम करे और उनको वैक्सीनेट करवाए। इसी में हम लोग अपनी फैक्ट्री, अपना शहर और अपना देश आगे चला पाएंगे। Rajesh, next please. Rajesh. सर किया सर, देखिए इंट्रोन वाला हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में कंट्रोल प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें सबको मालूम है टेम्परेचर स्कैनर टू बी इंस्टॉल एट एंट्री गेट, इट्स मिनिमम। सबको जो भी एंट्री करेगा उसको आपने टेम्परेचर उसका चेक करना ही है, और एक बहुत सिंपल सा थर्मामीटर आता है जो आप उसको चेक कर सकते हैं। रेगुलर क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन एंट्री गेट, स्टोर्स, एग्जिट गेट एंड कॉमन एरिया लाइक लिफ्ट, कैंटीन, इंटरनल रोड्स, प्लांट, ग्रीनरी। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है अभी इस टाइम पे कि अपने फैक्ट्री में लिफ्ट का कम से कम प्रयोग करवाएं। लिफ्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर कोई मास्क उतार के छींक दे या खांस दे तो उसका जो वायरस है वहां काफी देर तक रहता है।
तो इसीलिए हमने भी अपने यहाँ फैक्ट्री में लिफ्ट बंद कर रखी हैं, क्योंकि लोग सब यंग है और लेबर है और हम लोग खुद भी, तो उसमें हमने इवन साइनेज लगा रखी है, आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें। तो उस तरीके से उनको गाइड करें कि हम इसको लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। टॉयलेट्स, हैंड वॉश एरियाज इन कैंटीन्स एंड टॉयलेट बीइंग एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू बी डेकोरेटेड, fumigated and sanitizer to be compulsorily made available and all employees and staff to be educated on the use of same। वही चीज टॉयलेट में और हैंड वॉश, जैसे मैंने बताया कि हम भी उनको बोलते हैं कि टॉयलेट में जाके हाथ भी धो के आए और टॉयलेट का जो नल वगैरह उसको भी धोए, और इस तरीके से उसको जो सफाई कर्मचारी है उसके पूरे टॉयलेट को, बाथरूम को, जैसे राजेश जैन ने बताया 3 बार सैनिटाइज करें। तो ये ही इससे बचने के उपाय हैं। Organization to earmark designated isolation area for isolating employee identified during the workday in unit premises। तो हर चीज में डेजिग्नेटेड एरिया वैसे ही कंप्लायंस फैक्ट्री में होता है कि आपको इसके अंदर भी ईयरमार्क करना है कि एक आइसोलेशन एरिया, अगर किसी को आइसोलेट करना है उसके लिए वे, वैसे तो सोशल कंप्लायंस में ये ऑलरेडी हमारे पास में एक एरिया होता है जिसके अंदर हमने किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसको अलग लेटाने की जगह बना रखी है। इसको भी आप इस तरीके आपके लिए बनाना जरूरी है। वाटर टू बी सर्व्ड इन ए वे इंश्योरिंग नो ह्यूमन टच, वही बात आ गई। डिस्पोजेबल ग्लासेस, कप्स टू सर्व कॉफी टू बी यूज डिस्पोजेबल ग्लासेस, या उनका अपना ही ग्लास हो जिसको वो खुद यूज करें और उसको फिर धो के अपने पास अपने लॉकर में रखें। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड अदर पेपर मटेरियल विच माइट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल टू बी रिमूव्ड। स्टाफ शैल बी एनकरेज टू कैरी देयर ओन यूटेंसिल, कप्स, ग्लासेस। ये सेम चीज है। हमने भी जो रिसेप्शन पे न्यूज पेपर और मैगजीन से बिल्कुल हटा दिए हैं, क्योंकि एक अगर विजिटर आता है उसको उठाएगा, फिर दूसरा आएगा उसको हाथ लगाएगा, तो उस किस्म के बिल्कुल सही चीज है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन चीजों को हटा दें। और कप्स और यूटेंसिल्स हम इसको बार बार यूज नहीं करें, इसको या डिस्पोजेबल हो या उनका अपना ही होना चाहिए। Next, organization to increase the cross ventilation workshop to have restricted use of air conditioning। परफेक्ट, ये भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं और आप लोग भी ऐसे ही करने की कोशिश करें कि वायरस का फैलने का ज्यादा खबरें आ रही हैं, क्योंकि एयर में वो वही एयर कंडीशनिंग में वही एयर बार बार वो उसको सर्कुलेट करते हैं, तो उसके अंदर नेचुरली वायरस अगर है तो वो लोगों को ज्यादा खराब करेगा। ऑर्गेनाइजेशन टू टेम्परली सस्पेंड ऑल द रिक्रिएशनल फैसिलिटी इन द बिल्डिंग। बिल्कुल कोई भी किसी किस्म की त्योहार, मीटिंग, पार्टी, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही होता ही है कि आज एक स्टाफ का बर्थडे है, वो डिब्बा लेके आ गया, लो जी भाई साहब आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा लड़का हुआ है, आज मेरी लड़की हुई है, वो डिब्बा लेके सारे के टेबल पे जाएगा। वो हमने सब बंद करे हुए हैं। कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर 4 आदमी इकट्ठे हों या एक अननेसेसरी एक उठ के दूसरे के पास ना जाए, यही बचाव का तरीका है। इसके लिए टेम्परली हम रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल बंद कर दें। हार्ड कॉपी फाइल्स टू बी प्रोवाइडेड वेयर एवर पॉसिबल एंड सॉफ्ट कॉपी। इसके अंदर भी पेपर वर्क वैसे ही कम करना चाहिए। एक कागज दूसरे कागज टेबल जाने के बजाय उसको मेल करें, उससे टेलीफोन पे बात करें, उसको बताएं। अगर बहुत जरूरी है तो फाइल को मेल करके उससे डिस्कस करें। हार्ड कॉपी का इस्तेमाल कम से कम करें। यही इसके बचाव के तरीके हैं। ब्रजेश जी नेक्स्ट प्लीज। राजेश नेक्स्ट। सर हो गया सर, स्ट्रिक्ट फिजिकल। ये तो पॉइंट हो गया ना कंट्रोल। अब आया कंट्रोल प्रोग्राम फॉर डिपार्टमेंट स्टेशन। स्ट्रिक्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग एसओपी टू बी फॉलोड इन यूनिट। एसओपी विल बी डिस्प्लेड थ्रू नोटिस बोर्ड। ऐसे ही हर गेट पे, हर जगह पे क्या क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपीज हैं उसको डिस्प्ले करें, हार्ड कॉपी उसको लगाएं, लोगों को गाइड करें। डिस्टेंस के लिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, अदरवाइज जो भी काम है उसके लिए लिखित में हम लोगों ने जैसे हार्ड कॉपी दे दी विजिटर को कि भैया आप पढ़ लो, ऐसे भी स्टाफ के लिए भी, उनके लिए भी आप एक परमानेंट उनके
सामने उसके टेबल पे लिखा हुआ हो, बार बार उसकी नजर में आए कि हमने ये करना है, ये नहीं करना। रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्टाफ टेम्परेचर इंडस्ट्री ऑफिस टू बी डन ऑन डेली बेसिस एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। एग्जैक्टली, जब भी कोई एंटर करता है उसका जो टेम्परेचर रहे उसका रिकॉर्ड रखें और उसको देखते रहें कि अगर उसको कोई भी हल्का फुल्का भी टेम्परेचर उसका आ रहा है तो उसके बाद में उसको एंट्री से मना करें, उसको अलग रखें, उसका ध्यान रखें और उसको फर्दर क्या करना है, वो हमारे पास क्या प्लान्स है वो मेरे ख्याल आगे आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ हैंड वॉशिंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन एट लोकेशन देयर ऑफ द हाईलाइट। हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइजेशन के लिए एंट्री पे ही, एंट्री करते वक्त ही इसका एक स्टेशन बनाना है, हमने भी बना रखा है। गेट में एंटर करते ही सबसे पहले साबुन और सैनिटाइजर है, अपना हाथ धोएं और उसके बाद आपने एंटर करना है। डिस्पोजेबल ग्लव्स टू बी वॉर्न व्हेन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग सर्फेसेस, ग्लव्स टू बी डिस्कार्डेड after each cleaning if reusable gloves, and use those gloves to be dedicated for cleaning and disinfection of the surface for the sanitation and not to be used for। इसके अंदर ये सफाई कर्मचारी और खुद हम लोगों को ये सोच के चलना पड़ेगा कि जो हम यूज्ड ग्लव्स हैं या यूज्ड मास्क हैं उसको कैसे डिस्पोज करें ताकि वो भी एक वायरस फैलाने का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर, उसको दूर, उसका ध्यान रखना जरूरी है। जो ग्लव आजकल एक ग्लव्स आ रहे हैं इसके पॉलीथीन के, वो बहुत ही सस्ते हैं, हार्डली 25 पैसे का या 50 पैसे का एक पेड़ पड़ता है, तो उसको यूज करें और डिस्पोजेबल हैं उसको यूज करके उसको फेंक दें। ग्लव्स टू बी वॉर्न व्हेन रिमूविंग गार्बेज बैग, जब गार्बेज उठा रहे हैं, हैंडलिंग है उसकी, ट्रैश है, वॉशिंग ऑफ हैंड्स है, और जो भी ऐसा काम है उसको डिस्पोजेबल ग्लव्स को इस्तेमाल करना ही एडवाइजेबल है। एवरी फूड हैंडलर इन द प्लांट ऑफ द थॉरली ट्रेन्ड एंड विद ऑल नेसेसरी नॉलेज ऑन पैथोजन डिसइंफेक्शन। कैंटीन फूड, जिस कंपनियों में कैंटीन है, जिनके अंदर अपना कैंटीन बनाई गई है या खाना बनाया जाता है या बैठ के लोग चाय वगैरह खाते पीते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो वहाँ का खाना बनाने वाला या कुक है या वेटर है या जो भी उस कैंटीन के अंदर है, उसकी पहले टेस्टिंग हो, उसको चेक करा जाए, वो पूरी अपनी ड्रेस में हो, उसके अंदर उसने कैप पहन रखी हो, वो फूड को बिना ग्लव्स के हैंडल नहीं करे। इस तरीके के जरूरी चीजें इसमें ये हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें बताए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अरेंज टेम्परेरी डॉर्मेटरी अकोमोडेशन टू हाउस द वर्कर्स ऑन द प्रीमिसेस टू अवॉइड ट्रैवल एंड कॉन्टैक्ट विद अदर्स, सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजन पर द प्रिवेलेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में डॉर्मेटरी हैं, अकोमोडेशंस हैं, जिन बड़ी फैक्ट्रियों में वर्कर्स वहीं रहते हैं, उनके लिए भी वो बार बार आए या और जाए, नेचुरली जब बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं से वो वायरस को कैरी कर सकता है और ला सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखा जाए जो सारी गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन दी हुई है। थैंक यू। राजेश, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। सर, कंट्रोल प्लान फॉर विजिटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को उस तरीके से चेक कर रहे हैं, जो विजिटर है वो कहीं से भी कभी भी कोई भी एंट्री करेगा तो वायरस का वो एक कैरियर हो सकता है, उसके कैरियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। कहाँ से आया है, किससे मिल के आया है, कुछ पता नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ए विजिटर टू बी परमिटेड इन एक्सेप्शनल एंड इंपॉर्टेंट केसेस। आप विजिटर को तभी बुलाएं, आपका वेंडर है, आपका सप्लायर है, आपका कोई मिलने वाला है, उसको तभी बुलाएं जब बहुत ही जरूरी हो। अगर उसको आप ऑनलाइन, आप उसके साथ वर्चुअल, आप उसको मोबाइल से, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम चला सकते हैं, दैट शुड बी। राजेश, पिछला अट गया, जरा आप देखना।
राजेश विजिटर वाला देखना। मेरा सर। तो देख पा रहे हैं आप? शेयर किया सर। हाँ जी, अब ठीक है। बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू सिक्योरिटी ऑफिशियल एट द एंट्री गेट फॉलो एसओपी एंट्री ऑफ द ऑल विजिटर। वैसे भी बीसीआई में और सिटी पैट में कोई भी अगर विजिटर आता है तो उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। हमारे यहाँ पहले उसका फोन आता है कि भाई इतने बजे आएंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ये पहले भी है। पर कोविड कंप्लायंस में जो हम इसके अंदर है, उसके अंदर उसको सिक्योरिटी वाले को एंट्री गेट पे सारे एसओपी जो भी कोविड के हैं उसको चेक करना, उसका टेम्परेचर देखना, उसको मास्क देना, उसको अलग से बिठाना, और जो आपके नॉर्म्स हैं, जैसे हमने वहाँ उनको एक डूज एंड डोंट दे रखे हैं, आप डूज एंड डोंट को दें या विजिटर एरिया में लिख के रखें कि भी ये अगर आप विजिटर हैं, यू आर एंटरिंग द इन आवर फैक्ट्री और प्रीमिसेस, प्लीज फॉलो द दीज आर द इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्टली फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। तो आप इस पे कर सकते हैं। विजिटर टू हैव सक्सेस वाई विजिटिंग पासिस ओनली टू स्पेसिफिक। वैसे ये विजिटिंग विजिटर को तो वैसे तकरीबन किसी भी फैक्ट्री में अपने सब जगह जाना अलाउड ही नहीं होता, सीटी पैट और बीएससीआई में भी नहीं अलाउड होता। तो अगर उसको जाना है तो उसके साथ में आपका, अगर आपने कोविड ऑफिसर को बना रखा है, अगर उसका कहीं जाना है तो उसको साथ में डिस्टेंस बना के उसको ले जाए, या अलग एरिया उसको डिफाइन हो जहां वो बैठे, और बीच में 2 मीटर की दूरी रख के, अगर उसने किसी मर्चेंडाइजर किसी अकाउंट वाले से मिलना है तो उसके लिए अलग एरिया डिफाइन करा जा सकता है। विजिटर एंट्री नॉट टू बी अलाउड इनसाइड मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग एरिया, बिल्कुल अदरवाइज भी अलाउड नहीं होती। और इस टाइम तो बिल्कुल किसी को फालतू की जगह पे जाने का अलाउ करना ही नहीं चाहिए। इफ द विजिटर नीड टू एंटर द मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग एंड अदर एरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दे हैव टू अडेयर द कोविड प्रोटोकॉल। बिल्कुल ये हम चीज डिस्कस कर चुके हुए हैं। ऑल पार्सल एंड कोरियर आइटम डिलीवर्ड टू द गेट द कलेक्टेड फ्रॉम देयर बी डेजिग्नेटेड पर्सन। इसमें वैसे अदर बाकी कंप्लायंस में भी जो पार्सल आते हैं एक डेजिग्नेटेड पर्सन इसको लेता है, और उसके बाद जैसे राजेश जी ने बताया कि हम उसको पहले फॉगिंग कर लेते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ जरूरी है, कोई भी कॉरियर है, कोई पार्सल है, उसको भी ये करना जरूरी है। स्क्रीनिंग एट एंट्री गेट फॉर फीवर एंड अदर सिम्टम्स, नेचुरली वो तो जब भी कोई विजिटर आएगा उसकी फीवर और बाकी सिम्टम्स के चेक होंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ट्रेवल एंड सिम्टम्स, ये भी करा जा सकता है, जैसे इसमें कि अगर वो एक डिक्लेरेशन ली जाए उससे कि वो कहीं भी ऐसी जगह से नहीं होके आया, मान लो किसी हॉस्पिटल से ही होके आ रहा है, या ऐसी जगह से है जहां कोविड पेशेंट था, या वो ऐसी फैमिली से आ रहा है जिस फैमिली में कोविड है, तो अगर उससे ऐसे डिक्लेरेशन ली जाए कि, या उससे पूछ लिया जाए, अगर वो कहे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसी जगह से नहीं आ रहा, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन मानी जाएगी। अटेंडेंस टू बी रिकॉर्डेड एज पर द प्रोविजन ऑफ लोकल लॉ, और उसकी अटेंडेंस नोट करी जाए, रिकॉर्ड करी जाए। अगर कहीं ऐसा है तो उसका रिकॉर्ड बनाया जाए। कंट्रोल प्लान फॉर स्टाफ, ऑल अप्लाई, वैसे चाहे स्टाफ हो, विजिटर हो, कोई भी हो, नॉर्म्स तकरीबन वही हैं, थोड़े से प्लस माइनस हैं सबके लिए। इसमें स्टाफ के लिए ऑल एम्प्लॉय टू बी, क्योंकि टेम्परेचर इनका भी चेक होना है, सब चीजें इनके भी वैसे ही होनी है। ऑल एम्प्लॉय टू बी रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब रेगुलर सेहत। ये हम जरूर करें कि जो व्यक्ति हमारे स्टाफ का है, वर्कर्स है, उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु की ऐप होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एम्प्लॉय विद आइडेंटिटी कार्ड, बिल्कुल हर फैक्ट्री में आईडी दिया जाता है, गले में लटका के काम करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। Only those employees, workers identified by the supervisor or department had to be come to the factory. Name of some employee worker to be with the security, and only those employees to be allowed entry inside the premise. उसी हिसाब से जो वर्कर्स है, जो आइडेंटिफाइड सुपरवाइजर है, डिपार्टमेंट वाइज उसी डिपार्टमेंट में जाए जहां उसका डिपार्टमेंट है। वो इधर उधर दूसरे से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, हेलो हाय करने के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। Public transportation to be used with relevant precautionary measure, ensuring physical distancing norm, PPEs are all travelers and sanitizer.
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू बी यूज, इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग अपने अपने व्हीकल पे आ रहे हैं तो ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप आ रहे हैं तो आपको फिर डबल मास्क ये चीज़ें घर से ही लगा के चलनी चाहिए और आते ही इन चीज़ों का अपने हाथ धोने और बाकी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम ही बेस्ट है अगर किसी का काम वर्क फ्रॉम होम चल सकता है, पर फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन है, जो काम करना है, वो फैक्ट्री को में आके ही करना होगा और आके ही करना पड़ेगा। जो पेपर वर्क है या बाकी चीजें हैं वो वर्क फ्रॉम हो सकती हैं। एम्प्लॉइज वर्कर विद सिम्टम एसोसिएटेड विद कोविड इन्फेक्शन टू बी इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट टू देयर सुपरवाइजर। ये गेट पे ही अगर लगता है किसी को कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हर, जैसे हमने आपको बताया कि कोविड आपका कोई इंचार्ज या कोविड ऑफिसर या जो इस चीज के लिए ट्रेंड है उसको इन्फॉर्म करे, ताकि उसके ऊपर आगे की क्या प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो करे, उसको अलग से आइसोलेट एरिया में बैठाए, उसको हॉस्पिटल लेके जाए, उसका टेस्ट करवाए, जो बाकी की चीजें हैं उसके हिसाब से उसकी जिम्मेवारी हो कि वो फैक्ट्री में एंटर अगर करे तो उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहे, या वो एंटर नहीं करे तो उसको बाहर ले जाके क्या उसके बाद में उसको चेक टेस्ट करवाना है, उसका क्या इलाज करवाना है, उसके पूरी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी जाए। एम्प्लॉइज वर्कर हु आर वेल बट know that they have been exposed to a COVID family member to notify the supervisor। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी। हमने अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके की ट्रेनिंग देनी है या उनको कॉन्फिडेंस में लेना है कि अगर उसको उसके घर में किसी को किसी किस्म का कोई फीवर है या वो कोविड पेशेंट है या कोविड पॉजिटिव है, फैमिली मेंबर है वो उनका और उसके साथ वो रह रहा है, तो सुपरवाइजर को या कोविड ऑफिसर को नोटिफाई करे, बताए, ताकि उसके हिसाब से चला जाए, उसको अलग रखा जाए ताकि पता लगे अगर वो कैच कर चुका है कोविड तो उसको हम, जैसे बाकी कमल जी ने, रजेश जी ने और देश जी ने बताया कि उसको भी हम 10 दिन की छुट्टी दें ताकि वो घर रहे और यहाँ आके उस चीज वायरस को और बढ़ने का मौका ना दें। Employees worker found sick at work to be sent to his her home immediately and local health authority to inform about the sickness, name, address or stay of the sick employee। वैसे अगर कोई सिक है या उसको फीवर है उसको घर भेजे, ये एक पार्ट है। अगर उसका टेस्ट करवाते हैं और अगर उसके अंदर उसका पॉजिटिव आता है तो गवर्नमेंट के पास में उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाती है, उसका क्या करना है, उसका कैसे इलाज करवाना है। ये जो हमारे कोविड ऑफिसर हैं या आपने जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट करा हुआ है, आदमी रखा हुआ है, उसका काम है उसको संभाले और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उसकी हेल्प करे। और हमारी इंडस्ट्री में सोनी जैसे, अवधेश जैसे लोग हैं, वो उनको इस चीज का नहीं है कि उनके हमने पैसे काटने हैं, उनकी वो हेल्प करते हैं और उनको पेमेंट करते हैं। इससे एम्प्लॉय हमारा, उसको कॉन्फिडेंस है, वो बता देता है नहीं जी मैं ठीक नहीं हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इस तरीके का माहौल ही हमें बचा पाएगा। बिहेवियरल रिक्वायरमेंट, नो हैंड शेकन, हमने आज ऑलरेडी बताया कि आपस में हाथ मुंह मिलाना, नो फ्रिस्किंग एट एग्जिट एंड एंट्री गेट। कई फैक्ट्रियों में जाने के वक्त उसकी चेकिंग होती है, उसको देखा जाता है उसकी जेब में उसका सामान, तो इस माहौल में उसके साथ उसको हाथ लगाना या उसको उसके सामान को चेक करना मेरे ख्याल में एडवाइजेबल नहीं है। टचिंग आई, नोज एंड माउथ टू बी अवॉइडेड, ये उनको गाइड करना कि अपने हाथ मुंह को हाथ, क्योंकि वायरस नाक और मुंह के जरिए ही जाता है, तो उस चीज को टच नहीं करें। अगर टच करना मजबूरी है तो उसको पहले अच्छी तरह 20 सेकंड के लिए हाथ धो ले। ये हमारे को अपने वर्कर्स को, स्टाफ को समझाना चाहिए। वॉशिंग ऑफ हैंड्स टू बी डन रेगुलरली, physical distance to be maintained at all the time, and hygiene and sanitation to be practiced as prescribed in internal SOPs। वही सेम चीज है, फिजिकल डिस्टेंस, हाइजीन, सैनिटाइजेशन, ये सब जरूरी पार्ट है। अब आ जाता है कंट्रोल प्लान फॉर वर्क प्लेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। फैक्ट्री यूनिट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वर्क साइट, शॉप फ्लोर्स एंड ब्रेक ऑपरेशंस इनटू डिफरेंट शिफ्ट विद रीजनेबल गैप। इसमें ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप 50%
वर्कर्स के साथ काम करें तो हम इसके अंदर 2 शिफ्ट में भी काम करवा सकते हैं। उसके हिसाब से आप वर्कर्स को 2 शिफ्ट लगवाएं तो उसमें अंदर जगह डिस्टेंस बढ़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छी तरीके से हो सकेगा। अदरवाइज हमारी फैक्ट्रियों में अभी तक एक के साथ दूसरा इतने पास बैठा होता है कि एक ने पीस पकड़ा, उसने लेबल लगाया, दूसरे ने थैली में डाला, उसको हैंड टू हैंड चलता है। तो अगर हम लेबर को शिफ्टों में लेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस वायरस से बचने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉग टू बी मेंटेन कॉन्टैक्ट ग्रुप फॉर ईच पर्सन इन ईच शिफ्ट। और ये इसके अंदर ये भी ठीक है कि अगर हम एक लॉग बुक बनेगी, कल ये व्यक्ति आया था और इसके साथ बैठा हुआ है और आज इसकी रिपोर्ट है कि ये कोविड से इसको वायरस इसके अंदर है, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कल किस किस के कांटेक्ट में रहा, किस टेबल पे बैठा हुआ था, वहां कौन कौन बैठा हुआ था। ये एक अच्छा विचार है, अगर इसकी लॉग मेंटेन करी जाए तो ये काफी फायदा दे सकता है। फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ सर्विस शैल बी डन इन द वर्कप्लेस। जैसे राजेश जान ने बताया कि हम 3 बार फैक्ट्री को सैनिटाइज करते हैं, ये फ्रीक्वेंट क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन बाथरूम और सारे एरियाज का बहुत जरूरी है। डिसइंफेक्शन ऑफ ईच वर्कप्लेस स्टेशन एंड इक्विपमेंट टू बी डन विद स्पेशल अटेंशन टू हाई टच सर्फेसेस। जहां ज्यादा हाथ लगाए जाए, ज्यादा लोग जाते हैं, उसको बार बार डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। ऑल मशीन टच पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्रेमिसेस एंड मशीन ऑपरेटिंग पैनल, सीट्स, कवर, टूल बॉक्स एक्सेट्रा रिक्वायरिंग ह्यूमन टच टू बी सैनिटाइज रेगुलर इंटरवल। वो आप अपनी फैक्ट्री के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी बार उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, ये आप अपने उसमें आपको करना चाहिए। इसी से हम बचाव है। लॉकर रूम्स एंड चेंज रूम टू बी एक्सेसिबल विद रिस्ट्रिक्टेड इंश्योरिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग। फैक्ट्रियों में लॉकर रूम वो अपना लंच बॉक्स जहाँ रखता है, या अपना गिलास रखता है, या अपना प्लेट रखता है, या अपना जो भी सामान रखता है, वो ऐसे एक्सेसिबल हो कि एक दूसरे से दूर रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे। A systematic individual to be isolated, reported to local authority for immediate and relevant action. अगर किसी को सिम्टम्स आ गए हैं और हमें उसका क्या करना है, जो एसओपीज हैं कोविड पेशेंट के, उसे उसके हिसाब से हमें पालन करना चाहिए। मेंटेन ग्रुप डिस्टेंस इन द प्रोसेसिंग यूनिट वर्कप्लेस। ग्रुप के हिसाब से भी हमें, जैसे मैंने बताया कि अगर टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं, उसका आपका रिकॉर्ड हो, पर इतनी डिस्टेंसिंग हो कि एक दूसरे के कम से कम 2 गज की दूरी पे बैठ के काम करें, और इसका लॉग बुक बनाएं। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेरियस ऑप्शन ऑफ डिजिटल एंड ऑनलाइन पेमेंट टू बी एक्सप्लोर्ड इन अवॉइड फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑफ बिल, कॉपी एंड कैश। ये तो वैसे काफी हद तक अभी हो ही गया है कि डिजिटल पेमेंट ही हो रही है। कम ही लोग पेमेंट के लिए किसी को पास लेने जाते हैं कैश की ट्रांजेक्शन 95% तक तो मेरे ख्याल खत्म ही हो गई है। Service provider client facilitating movement of goods to be clean the vehicle using appropriate disinfection। किसी भी फैक्ट्री में जब भी कोई कंटेनर या ट्रक वैसे भी एंटर करता है तो उसके अंदर उसकी सफाई, उसको डिसइंफेक्ट करना एज पर नॉर्म्स ऑलरेडी बीएसआई में हमारे कंप्लायंस में है, और उसको आप डिसइंफेक्ट करें। और गुड्स को, जैसे राजेश जी ने बताया, आने वाली गुड्स को भी डिसइंफेक्ट करते हैं। ड्राइवर, लोडर्स एंड अनलोडर कैरिंग पोर्ट प्रोडक्ट कोविड ऑपरेट। वैसे हम ड्राइवर्स, लोडर्स और इन लोगों का अलग ही एरिया रखें, जिसके अंदर वो अगर वहीं जाके बैठे, डिस्टेंस में बैठे, और एक दूसरे के साथ में उसकी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ऑल व्हीकल वेदर एम्प्टी और ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल अदर प्रोडक्ट टू बी कंप्लीटली क्लीन एंड चेक बिफोर लोडिंग एंड बिफोर एंट्री लोडिंग। वही व्हीकल वाली बात है कि जिसमें आप अपनी व्हीकल जो भी माल ले जा रही है, ला रही है, उसको कंप्लीटली चेक करें, सफाई करें, उसको डिसइंफेक्ट करें। ओनली 1 पर्सन टू बी इंटाइटल टू इंटरेक्ट द ड्राइवर इंश्योरिंग द शिफ्ट। इसके अंदर आपकी फैक्ट्री में अगर कोई गाड़ी आई है तो उसको एक व्यक्ति की जिम्मेवारी हो, उससे बात करे और उसको पूरे कोविड नॉर्म्स से पता हो, उससे बात करे, उससे इंटरेक्ट करे, और जो भी काम है उसको करे और करवाए, ताकि ज्यादा उसके साथ में लिंक में न आए, क्योंकि वो भी जो बाहर से गाड़ी आई है या बाहर का ड्राइवर है वो भी कैरियर हो सकता है। राजेश नेक्स्ट। राजेश नेक्स्ट।
Sir, Trucks or other vehicle carrying the raw material product to be always be properly covered by the tarpaulin and wrapping material used for covering cargo must be sanitized. जो भी गाड़ी आई है वही उसकी बात है कि उसके ऊपर अगर तरपाल है या उसका कवर है वो भी सैनिटाइज होना चाहिए. ड्राइवर, लोडर, अनलोडर टू स्टे इन अनलोडिंग लॉकिंग नियर द व्हीकल. ट्रैक्टर, जो भी ड्राइवर या लोडर या अनलोडर हैं अगर गाड़ी के साथ में आए हैं तो उसका अलग एरिया हो, लोडिंग का अलग एरिया हो. वैसे तकरीबन फैक्ट्रियों में कंप्लायंस के हिसाब से ऐसे एरिया मार्क होते हैं, तो उसी हिसाब से ये हमारे को काफ़ी कोविड से बचाने में हेल्प कर सकता है. When interacting with other people, driver able to maintain physical distance norms and should be wear mask. Naturally, कंपनी में, फैक्ट्री के अंदर हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क मस्ट है. Rejected packaging material to be kept aside the discarded judicial to prevent cross contamination. Rejected माल जो है, पैकेजिंग मटेरियल जो है, जो हम कहते हैं कि माल खुला, कोई डब्बा, कोई पैकिंग, कोई थैली, उसको भी उसी हिसाब से उसको रखें और उसको भी उस जगह पे डालें जिससे अगर वायरस है तो दूसरी जगह पे वो ट्रेवल नहीं करें. पैकेज गुड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैकेजिंग मटेरियल कंटेनर टू क्लीन कंटेनर फॉर स्टोरेज. ये भी सेम गुड्स के लिए ही है. आप अपने मटेरियल को, अपने गुड्स को ठीक जगह पे, ठीक समय पे, डिसइंफेक्टेड जगह पे रखें ताकि ये वायरस फैल नहीं सके. कंट्रोल प्लान फॉर रॉ मटेरियल to consider seeking suppliers compliance of disinfection of supplied product. This includes all raw material, equipment, e-item as computer, printer, electrical, cable, office phone, etc. as identified by the organization in its incoming list of assets. ये अपने प्रिंटर, अपने कंप्यूटर, अपने इक्विपमेंट जो भी हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, फोन्स हैं, इसको भी डिसइंफेक्ट करें. रोज आके सवेरे ऑफिस वक्त उसको साफ करें और इसको डिसइंफेक्ट करके ही काम पे लगे और कोशिश करें कि आपके इन आइटम को दूसरा व्यक्ति ना छुए, इसको इस्तेमाल नहीं करें. All finished products stored in the warehouse to be carefully handled by only designated staff at the warehouse. जो भी फिनिश प्रोडक्ट हैं वो डेजिग्नेटेड ही व्यक्ति उसको हैंडल करे. कोई उसको आता जाता है, ये नहीं आ रहा है तो छू रहा है, इधर जा रहा है तो हाथ लगा रहा है, वही व्यक्ति उसको उठाए जो उसके लिए उसको डेलीगेट करा हुआ है. फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया टू बी रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड. फिनिश्ड एरिया स्टोरेज भी कंप्लायंस में ऑलरेडी अलग एरिया ही होता है, उसको डिसइंफेक्ट करें और उसके अंदर ही सामान रखें और उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड, वैसे भी सीडी पैड में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, उनके अलग कार्ड होता है, वही व्यक्ति जा सकता है. तो इसके लिए भी, कोविड के लिए भी ये एक अच्छा पॉइंट है. पैकिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट टू बी डन इन सेपरेट कंप्लीटली सैनिटाइज्ड एरिया. ये भी सेट ऑलरेडी पैकिंग का एरिया अलग होता है, फिनिश प्रोडक्ट का अलग होता है, उसको भी सैनिटाइज जैसे बाकी एरियाज करते हैं उसको भी हर रोज सैनिटाइज करें और उसके बाद ही काम शुरू करें. सैंपल्स टू बी ट्रीटेड इन द सेम एज फिनिश प्रोडक्ट. और सैंपल शोरूम जो हैं उसको भी आप इस तरीके का ध्यान रखें कि अगर वहां कोई जा रहा है, आ रहा है, सैंपल्स को भी आप प्रोडक्ट के हिसाब से सैनिटाइज करें और उस एरिया को भी सैनिटाइज करें जहां आपने सैंपल्स रखे हुए हैं. पैकिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट डन ऑफ साइट लेस देन कंटेनर टू प्रोड्यूस फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट एज पर डिस्पेंस. जो आपके LCL हैं उसका फ्यूमिगेशन और ये सब चीजों का भी आपने ऑफ साइट ध्यान करना है. नेक्स्ट देश. sir, warehouse. Control plan for warehouse. Regular cleaning, sanitation and disinfection of the whole area to be done regular intervals. Locker rooms and change room to be accessible with restricted access, ensuring physical distancing. All high-touch surface to be identified and those shall be cleaned at a more frequent interval as outlined in government of guideline advisories. All product packaging material, promotional material, etc. to be stored with pallets and kept distant from wall and away from the floor. ये जो पैलेट का है और इसके अंदर हर कंप्लायंस में ये होता है कि कोई भी
प्रोडक्ट रेडी हो, रॉ मटेरियल हो, आपका सेमी फिनिश हो, किसी दीवार के साथ या जमीन के साथ, फर्श के साथ टच नहीं करना चाहिए। पैक्ड कार्टन हो, खुला मटेरियल हो, या तो पैलेट्स के ऊपर रखा जाएगा या दीवार से, और छत से भी एक सेफ डिस्टेंस चाहिए, दीवार से भी चाहिए और जमीन से भी चाहिए। कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट किसी किस्म का भी किसी दीवार, छत, फर्श से टच नहीं करना चाहिए। ये कोविड कंप्लायंस में भी इस चीज को माना गया है, तो इसको हमें ध्यान करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लान फॉर गैदरिंग, लंच एंड ब्रेक टाइमिंग टू बी staggered and ensure the seating in canteen. Rest area is done according to the prevalent physical distance norm. लंच ब्रेक में भी वही सोशल डिस्टेंसिंग का, डिस्पोजेबल का, और अपने अपने ग्लास और कप का, या डिस्पोजेबल हो या अपने ही हो, ये जरूरी है। कैंटीन से भी है साइनेज ऑफ स्पिटिंग एंड लेफ्ट ओवर फूड नॉट अलाउड। कैंटीन में भी नेचुरली स्पिटिंग तो कहीं भी अलाउड नहीं होती। लेफ्ट ओवर फूड कि आप अपना खाना वहां उठाएं और उधर छोड़ के चले जाएं, या एक दूसरे का शेयर ना करें। इन दिनों ये भाईचारा और दोस्ती ना निभाएं तो बेहतर है। अपना खाना खाएं, अपना खाना लाएं और दूसरे के सामान का इस्तेमाल नहीं करें। Employees to be encouraged to use their personal means of transport instead of corporate and public transport. Factories to be temporary transport to ferry workers and ensuring physical distance. Employees के लिए भी हम उसको encourage करें कि पब्लिक पर्सनल अपने मीन्स पे आए, अपनी गाड़ी पे आए। अगर फिर भी उनको बस का या मेट्रो का इस्तेमाल करना पड़ता है तो पूरी सेफ्टी के साथ में, डबल मास्क के साथ में आए और आके पूरा अपने हाथ वाथ धो के फैक्ट्री में एंटर करें। फैक्ट्री टू बी इंटेंसिवली ट्रेन देयर एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी एंड सर्विस स्टाफ और फिजिकल डिस्टेंस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। ये जनरली हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने एम्प्लॉय और अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को सफाई और सिक्योरिटी के हिसाब से ट्रेन करे, उनको समझाए, गाइड करें। इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्पलाइन नंबर का, क्वारंटाइन फैसिलिटी, टेस्टिंग फैसिलिटी, लोकल, ये हर फैक्ट्री के बाहर और अंदर 2-3 जगह हम लोगों ने भी लगा रखा है। हेल्पलाइन नंबर, नज़दीक के हॉस्पिटल का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, पुलिस का नंबर, टेस्टिंग फैसिलिटी, लोकल गवर्नमेंट, लोकल थाने का नंबर, लेबर ऑफिसर का नंबर, ये मैंडेटरी है। हर फैक्ट्रियों के बाद ये लगाना जरूरी। अब आप इसके अंदर डॉक्टर का, टेस्टिंग का और इनका भी इंफॉर्मेशन परमानेंटली आप बोर्ड पे लगाएं। Restricted movement even within the entire plant to ensure that people stay within sanitized area. वही बात आ गई, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, अननेसेसरी मूवमेंट को रोकें। एक दूसरे मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए इधर उधर व्यक्ति ना जाए, आपका वर्कर ना जाए। फैक्ट्री टू रिजॉर्ट टू रिडक्शन शिफ्ट और मिनिमाइजिंग वर्क प्लेस इन ईच शिफ्ट। शिफ्टों में काम करें, वर्कफोर्स कम रखें और उतने ही लोग आए जिससे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। कॉन्फ्रेंस कॉल शैल बी इनकरेज। नेचुरली एक दूसरे के टेबल से उठ जाने के बजाय उससे लैंडलाइन से बात करें, इंटरकॉम से बात करें, मेल पे एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्डेंस करें। Whenever necessary, internal meetings are held. Physical distancing norm with COVID approved behavior to be compulsory for all attending. Whenever necessary, internal meeting. फैक्ट्री में अपने इंटरनल मीटिंग जरूर रखें, उसका रिकॉर्ड बनाएं, उसकी फोटो रखें। कल अगर कोई आपका उस तरीके का ऑडिट है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने हर 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने जो भी आपने उसका पीरियड तय करा है उसकी आपका रिकॉर्ड हो। ये मीटिंग हुई, इन लोगों ने अटेंड करी और ये एजेंडा था और ये उसके मिनट्स हैं। रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। वर्कर्स टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स ऑन द लाइन, टूल बॉक्स मीटिंग, टी टाइम, लंच टाइम, गेट एंट्री। जब भी किसी भी मीटिंग में फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन हर मीटिंग में, हर जगह पे होना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है कोविड से बचने के लिए। नेक्स्ट राजेश। सर आउटसोर्सर्स। हाँ जी राजेश, आया नहीं। कंट्रोल प्लान फॉर आउटसोर्सर्स।
हमारी इंडस्ट्री में आउटसोर्सिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है, चाहे कारीगरों का है, चाहे कुछ बाहर माल बन के आता है, उसके अंदर पॉइंट ये थ्रू ऑल स्टेज आउटसोर्सिंग द ऑर्गेनाइजेशन ensure that all outsourced activities and item meet the requirements of COVID protocol. प्रोटोकॉल सेम है, चाहे प्रोडक्ट आए या व्यक्ति आए. Organization to consider having a written agreement to the effect with all entities to whom activities have been outsourced. हम उसके साथ में एक रिटर्न एग्रीमेंट करें कि डूज एंड डोंट वाला जो भी हमने अभी डिस्कस करा है, अगर हमारा क्वालिटी वाला या प्रोडक्शन वाला अगली की साइड पे जाता है, वो भी इन बातों का ध्यान करे, जो भी कोविड कंप्लायंस के हमारे प्रोटोकॉल्स हैं. ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एक्सेस टू आउटसोर्स एंटिटी साइट फॉर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटिंग ऑफ आउटसोर्स एक्टिविटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल. जो हम अपने यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, हमारा जो कोविड ऑफिसर है अगर वहां जाके उनकी भी उन चीजों पे ध्यान दे और उनको उस चीज का ऑडिट करे और उनको भी समझाए, तो ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है. ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द इनकमिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट एंड मेक देयर हैंडलिंग, स्टोरेज एंड यूसेज कंप्लायंट विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल. वही सारे रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की हैंडलिंग का जो भी प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो करने हैं. स्टाफ एंगेज द इनकमिंग मटेरियल, ये भी मटेरियल से कनेक्टेड है. आउटसोर्सर्स टू इंश्योर कंप्लीट सैनिटेशन मेजर एट इट्स साइट फॉर द जॉब वर्क. वो जॉब वर्क पे जो काम माल गया है उसके हिसाब से भी सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए. आउटसोर्सर्स टू इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड सेग्रीगेटेड ऑल टाइम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट. अब इस अगर जैसे हमने पहले बताया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ही यहाँ फार्मूला लगेगा. जो पहले माल आया हुआ है उसको पहले आप देखें, जो उसके बाद आया वो लाइन में, फिर उसके बाद अपने आप उसका 2-3 दिन 4 दिन बाद नंबर आएगा, तो उस तरीके उसको सेग्रीगेट करें. Outsourcers to ensure that only the delegated staff manage the outsourced activity and product within allotted shift time. Ensure that no other staff comes to contact with the delegated staff to avoid chances of confrontation. इसके वही हमने पहले इसको डिस्कस करा है कि हर चीज का डेलीगेटेड स्टाफ हो, वो उसी चीज पे ध्यान दे ताकि उस चीज को एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज तरीके से हैंडल करा जा सके. चाहे आउटसोर्स वाला है, चाहे प्रोडक्ट वाला है, रॉ मटेरियल का है, सैनिटाइजेशन का है. इफ आउटसोर्स बिकम अवेयर ऑफ एनी इन्फेक्शन टू मटेरियल प्रोडक्ट, द सेम टू बी इमीडिएटली रिपोर्टेड द प्रिंसिपल फॉर टेकिंग मेजर्स एज वारंटेड बाय द स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग क्वारंटाइनिंग ऑफ द मटेरियल ऑब्लिक प्रोडक्ट्स. अगर वही बात है कि अगर किसी मटेरियल पे लगता है या किसी प्रोडक्ट पे ऐसा लगता है कि इस पे ऐसी जगह से आया है जहां बाद में मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति को वहां कोविड था और वहां से माल बन के आया है, तो उसको भी हमें उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा और रखना चाहिए ताकि उसके अंदर जो वायरस का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए. नेक्स्ट राजेश. Emergency response, sir. हाँ जी, कंट्रोल प्लान फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स. Organization to plan emergency response or taking into account the needs of relevant interested parties, emergency service control. अब जब अगर इतना करने के बाद कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हर फैक्ट्री में हमारे पास एक आइसोलेशन रूम जो बिल्कुल सेपरेट हो, अलग से हो, और उसमें ऐसी फैसिलिटीज हो जो व्यक्ति कुछ देर वहां अलग से बैठा है जब तक आप उसके लिए बाकी इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं दे पाते, उसका अरेंजमेंट हो उसके अंदर और बाकियों से हट के हो, वो जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोडक्टली रिव्यू एंड वेयर नेसेसरी रिवाइज एट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्रोसीजर. उसके बाद जो प्रोसीजर एसओपीज हमने बनाए हुए हैं उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको टेस्ट करना है. उसके लिए आपके पास क्या सिस्टम है, आपका कोविड ऑफिसर को आपने कितना गाइड करा हुआ, आपको उसके एसओपीज बनाने हैं, उसको लिख के रखना है कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या क्या करेंगे. उसके डूज एंड डोंट्स बना के आपको पहले ही हार्ड कॉपी में रख के तैयार चाहिए और उसके लिए डेलीगेट स्टाफ होना चाहिए. और कहाँ ले जाना है, क्या करना है, ये देखना है.
designated isolation area to have access to all first aid facilities and help and number of local health authority. आइसोलेशन के अंदर नेचुरली हमने जो बोर्ड बनाए हैं कि इसके अंदर ये यहाँ ये डॉक्टर है, ये टेस्टिंग है, हमें क्या चेकलिस्ट है, हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, उस फर्दर क्या क्या स्टेप्स हैं, वो पूरा रिकॉर्डेड होना चाहिए. फैक्ट्री एरिया टू बी साइनेज एंड एसओपीज डूज एंड डोंट ऑफ इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी. यही बात आ रही है, डूज एंड डोंट्स के हमारे पास में पूरा साइनेज लगे होने चाहिए. नेक्स्ट राजेश. थैंक यू राजेश, थैंक यू आपका. आपने जो भी एक हमारे जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं, अब मैं समझता हूं कि जो भी अभी इतनी देर हम लोग इस पे डिस्कस करते रहे, कई नई चीज सामने आई हैं. और मैं इसके अंदर दो तीन ये चीज कहना चाहूँगा कि हमारा इस टाइम मेन मकसद क्या है. हमारा मकसद है कि काम भी चले सेफली, हम अपने और अपने स्टाफ की, विजिटर की रक्षा करते हुए, उनको बचाते हुए फैक्ट्री को कैसे चलाएं, ये जरूरी है. इसको हमने डिस्कस करा, कई नई चीजें सामने आई हैं. तो मैं फर्दर राजेश रावत को कहता हूं कि आप आगे का बताएं, आगे एजेंडा पॉइंट क्या है. थैंक यू भाई. Thank you, sir. Thank you very much for that very detailed and extensive explanation of what need to be done in these difficult circumstances. I know our factories, our units are all geared up. इसके अंदर कोई क्वेश्चन है किसी का राजेश, तो आप देखो किसी ने कुछ पूछना चाहे, कोई क्वेश्चंस आए हैं आपके पास में, या कोई ऐसी चीज हो डिस्कस करने वाली हो. सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे वो बेसिकली मोटा मोटा पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन तो अभी है नहीं, अभी तो कर्फ्यू है, और जो सर्कुलर भी आया है अभी सरकार का, उसमें वो कहा गया है कि आपके फैक्ट्रीज और प्रेमाइसेस सब खुले रहेंगे. तो कुछ लोग सिर्फ पासेस के बारे में जानना चाह रहे थे कि पासेस कैसे मिले सर. एक ये लोगों का मेन वो था सर. तो आप लोग, चूंकि आप लोग की सारी फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हैं, गुड़गांव में भी हैं, नोएडा में भी है, मुरादाबाद में है, मुंबई में है, तो आप लोग गाइड करें सर. मैं इसमें पहले तो नोएडा की राजेश की फैक्ट्री है. राजेश आप बताओ कैसे काम कर रहे हो भाई. राजेश जैन साहब. हमारे यहाँ गुड़गांव की बात करी जाए तो हमारे यहाँ उन्होंने एक टाइमिंग फिक्स करे हुए हैं. हम 5 बजे फैक्ट्री बंद करते हैं, 6 बजे कर्फ्यू स्टार्ट होता है और सवेरे 5 बजे तक चलता है. तो हम सवेरे 8:30 बजे शुरू करते हैं और 5 बजे फैक्ट्री को बंद कर देते हैं. सर नोएडा में भी सैटरडे संडे उसमें कोई मूवमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाँ चलो राजेश पहले आप बताओ, आप बीच में थे नहीं. नोएडा में क्या है आपका, क्या सर? नोएडा में ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्रियां चालू है. सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सपोर्टर्स को 18 मई 2020 के बाद में पूरा छूट मिल गया था कि जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं वो लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान भी काम कर सकती है. तो स्टाफ के पास में एक कंपनी का आईडी होता है, वो आईडी दिखा करके फैक्ट्री में आराम से आकर के काम कर सकते हैं. कमल सोनी साहब भी हैं मुरादाबाद से. कमल जी. इसके अलावा राजेश किसी. सर कमल जी से भी फीडबैक लेते हैं, मुरादाबाद में क्या स्थिति है सर. आपने गुड़गांव बता दिया, जैन साहब ने नोएडा बता दिया, सोनी साहब बताएं. सोनी साहब आप अनम्यूट करें. कमल जी, कमल जी आप म्यूट हैं. मैं जरा. हाँ कमल जी, हम अभी जो चर्चा कर रहे थे वो ये थे कि फैक्ट्रीज में मतलब किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, इन द सेंस कि कोई गेट पास या कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है. तो मल्होत्रा साहब का जो फीडबैक था, गुड़गांव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैन साहब की यूनिट ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में, वहां भी किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल काम चल रहा है. आप मुरादाबाद के बारे में बताएं. मुरादाबाद में किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि आप जो है वीकेंड्स पे भी काम करिए और मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब काम करिए. मतलब कहीं भी कोई कैपेसिटी के ऊपर वो नहीं है कि आप लेबर कम बुलाइए. वो लोग कह रहे हैं कि 100% कैपेसिटी से आप यूनिट चला सकते हैं.
मतलब कोविड कंप्लायंस का अगर हम फॉलो करें तो यूनिट चलाने में कोई हाँ 100% कैपेसिटी पे, हाँ, कोई ये बिल्कुल। नहीं कि 50% पे आपको चलानी है या करनी है। इनफैक्ट जो लेबर रात में भी आ जा रहे हैं, जिनके ओवर टाइम हो रहा है, अगर कोई 10 बजे भी डेली जा रहा है, और वैसे जैसे लॉकडाउन 8 बजे से है, तो अभी कोई भी लेबर को कोई भी नहीं रोक रहा, बिल्कुल भी। मतलब इवन अगर वो इतना ही कहते हैं हम इस फैक्ट्री में जा से आ रहे हैं, तो वो आईडी तक भी नहीं देख रहे हैं। और मतलब काफी इस वाले में सहूलियत है, काफी लिबरल है पुलिस वगैरह जो है, अगर वो फैक्ट्री से वर्कर आ रहा है। एक सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हाँ जी। वो सिर्फ एक पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जस्ट वांट टू ऐड अ सजेशन, रेज अलार्म इफ वी सी एनीवन अनवेल इनसाइड फैक्ट्री ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। रजनीश जी बोल रहे हैं सर, रजीशा से। थैंक यू रजनीश जी, पॉइंट वेरी वेल टेकन। ये मल्होत्रा साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में बार बार ये बात कही है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति, अगर आपके फैक्ट्री में आपका एम्प्लॉय हो गया, आपका वर्कर हो गया, या कोई आपका सप्लायर हो गया, अगर आपको लगता है कि वो कोई भी उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसे तुरंत से आप अलग करें और उसे घर जाने को कहें, ताकि वो टेस्ट करा के दोबारा रिपोर्ट कर सके। सर हाँ जी। यही कमेंट था सर। एक बाकी क्वेश्चंस में ऐसा सच नहीं है सर, बाकी बात आपने क्लियर ही कर दी सर। मेरे काफी चीजें डिटेल में आ गई हैं, पर्सनल भी आ गई, फैक्ट्री वाइज भी आ गई, और जो स्टैंडर्ड बने हैं उसके अंदर सब चीज बिल्कुल एवरीथिंग इज कवर्ड। तो और किसी ने पैनल में किसी ने कुछ बात करनी हो तो रख सकता है। सर मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलो सर, आप आज ये जो विजय। वेबिनार में जो कोविड प्रोटोकॉल का जो प्रेजेंटेशन आपने दिया है सर, मतलब ये अगर हम इसको लाइफलाइन अगर कहें हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, हम पिछले 15 दिनों में बेड, हॉस्पिटल और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने में हो सकता है असमर्थ रहे हों, लेकिन क्या सर हम ये कोविड प्रोटोकॉल का ये जो अभी पेपर प्रेजेंटेशन है, इसको अगर हम सारे एक्सपोर्टर लाखों लोगों की जान नहीं बचा सकते अप्लाई करके? सर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, सबसे आसान बात जो होती है ना, वो सबसे लेट समझ आती है, सबसे आसान बात। तो मैं वाइस चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब और डीजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ये पूरा मई का महीना सर, ये पूरा प्रोडक्ट, ये जो अपना प्रोटोकॉल है कोविड वाला, इसको अब सारी फैक्ट्रियां इंप्लीमेंट करें। क्या हम वीकली 1 घंटा रीजन वाइज, सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ये सेमिनार अभी सर पूरे महीना करें, सभी लोगों तक ये बात पहुंचाएं। सर आज आपने जितनी बातें बताई है ना, उसमें से कुछ बातों का पालन हम भी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत लाभ होगा। जब मैं परसों फैक्ट्री वापस खुलेगी तो मैं बहुत सारे आपके बताए हुए नियमों को इंप्लीमेंट करूंगा, तो इससे जरूर फर्क पड़ेगा। जो वर्कर्स हैं या स्टाफ है, अगर इनको पालन करते हुए अगर उनकी जान बचे सर, तो ये मुझे लगता है कि देश सेवा है। तो ये पूरा महीना, पूरा मई का महीना सर, अपना प्रोटोकॉल को लागू करें। सर एक निवेदन और है, ये पूरा का पूरा सर सारे एक्सपोर्टरों को अगर ईमेल कर दिया जाए, और हर हफ्ते अगर रीजन वाइज एक्सपोर्टरों को, उनके सर स्टाफ को, अगर एचआर, प्रोडक्शन वाले अगर ज्वाइन करें सर, इससे सीखने में, इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि सर आसान बात एक बार में समझ में आती नहीं है। ये पूरा महीना सर आप ये इसको लागू करिए, मेरा हाथ जोड़ के सर आपसे निवेदन है। राजेश आप ठीक कह रहे हो, ऐसा है, हम लोगों की जो मेंटेलिटी होती है ना, जबकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमें तकलीफ नहीं होती तब तक हम दवाई नहीं लेते। ये जब लागू होगा, बायर लागू करेगा ना, तो देखो फिर कैसे लोग भागेंगे। और मैं ये समझता हूँ अगर हमने इतना आज 2 घंटे लगा के एक फैक्ट्री में, किसी भी एक फैक्ट्री में एक आदमी की जान भी बचा ली, तो ये उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इस टाइम की कीमत बहुत कम है। हमने ये अगर प्रोटोकॉल फॉलो करे, हमें देख के अगर मान लो कुछ लोगों ने कुछ फॉलो करे और कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया और कुछ लोगों की जान बची, तो मैं समझता हूँ ईपीसीएच, राजेश जी, चेयरमैन साहब, कमल जी, मुशाला जी, आप, हम लोग इसमें हमने कुछ अच्छा काम करा, तो यही हमारा बनता है। हम अपना रोल अच्छा कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बताना हमारा काम है, इंडस्ट्री को गाइड करना, इंडस्ट्री में बैठ के डिस्कस करना, ये हम लोग कर रहे हैं।
बाकी अगर कई लोगों को मेरे पास कईयों के फोन आए, वो कह रहे हैं कि भैया फैक्ट्री तो हम चला नहीं रहे, हम ये क्या जरूरत पड़ी है। मेरा उनको यही जवाब था, मैंने कहा फैक्ट्री आज नहीं चला पा रहे तो कल चलाओगे। ये कोविड का तो पता नहीं, अब सारी उम्र हमारे साथ रहने वाला है, तो हम इसके विद इन इसके अंदर अगर हम आज इसको समझ लें कि फैक्ट्री कैसे चलानी है, उसी को हम आगे सोच के चल रहे हैं क्या करना चाहिए। हमें ये नहीं है कि आप ये करो और जरूर फैक्ट्री चलाओ, फैक्ट्री आपकी अपनी है। अगर आप बंद करके बैठना चाहो आपकी मर्जी है, अगर आपने चलानी है तो अपने वर्कर्स, अपनी और सबकी सेफ्टी के लिए, देश के लिए, अपने जान के लिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए ईपीसीएच कर रही है, बाकी अपनी अपनी समझ है, हम अपनी समझ से चल रहे हैं। ईपीसीएच का काम है सबको गाइड करना, वो ईपीसीएच कर रही है, हम ईपीसीएच के साथ हैं। और मैं समझता हूं कि राजेश इसके बाद में है, हम रवि जी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करें। हाँ सर। हाँ सर, राजेश। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि हमको इस कोविड के साथ जीना है सर। और अगर हम अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को समझ पाएंगे, खुद भी समझ पाएंगे, अपने वर्कर्स को भी समझा पाएंगे और बाकी लोगों को भी समझा पाएंगे और प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो सकारात्मक रहना है सर। इस दौर में भी काम करते हुए सकारात्मक आउटलुक बना के रखें सर। अब मैं अंत में निवेदन करूंगा, हमारे साथ हमारे चेयरमैन है श्री रवि के पासी साहब पिछले 1.5 घंटे से हमारा पूरा डिस्कशन सुन रहे हैं और वो परमानेंट एक्सपोर्टर हैं, बहुत सालों का उनका अनुभव है। हम चाहेंगे वो अपना अनुभव इतनी सारी डिस्कशंस के बाद वो हमसे शेयर करें अपनी राय इस विषय में। सर पासी साहब। हाँ जी, गुड इवनिंग। मल्होत्रा जी, कमल सोनी जी, राकेश जी, डीजी पीसीएच, एंड राजेश जैन जी, मुछाला जी, ईपीसीएच स्टाफ एंड सारे पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक मोस्टली जो चीज़ें हैं जो इसके नॉर्म्स हैं काफ़ी डिटेल्स के अंदर मल्होत्रा जी ने उनका अभी संज्ञान किया है। और ये ठीक है, कई ऐसी चीज़ें भी हैं, हो सकता है कि ये कोविड के अंदर हमें ज़्यादा देर रहना पड़े और इसके लिए आपको एक और भी चीज़, मतलब ये सुजेशन है या कई लोग करना चाहिए, जैसे हमारी एक बैंक पासबुक होती है, तो कोविड की हमें एक फैक्ट्री पासबुक भी बनानी पड़े कि भाई आपको पूरी डिटेल्स, कब इंजेक्शन लगा था, पहला कब लगा था, दूसरा कब लगा था, कब आप बीमार हुए थे। और ये डिटेल्स में भी अभी कई कंट्रीज हैं जो इसको अभी कोविड पासपोर्ट लागू करने जा रहे हैं। तो ये मैं अभी 4 दिन पहले देख रहा था यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर। और रही बात, कई बार लोग फैक्ट्री के अंदर बाथरूम भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, नो डाउट, मगर उसके अंदर ऑटो केमिकल शावर्स आजकल आने लगे हैं कि एक आदमी अगर उसको यूज़ कर रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं, वो एकदम उसको अनफेक्टेड करेगा। और एक और भी है कि एक दो चीज़ें और हैं। अभी मेरी बात कुछ दिन पहले जर्मनी में एक इंपोर्टर से हो रही थी, तो मैं उससे पूछ रहा था, भाई आप क्या आपने वेयर हाउस जाते हो? कहते हैं जी हम लोग वेयर हाउस जरूर जाते हैं। अभी जैसे हमारा स्टाफ जो 50 का है तो हम सिर्फ 20 को बुलाते हैं और 20 स्टाफ को हम कभी भी नहीं मिलते और कोई भी एक दूसरे से नहीं मिलता। हर एक आदमी का अलग से कैबिन, अलग से एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर हम उसको जो चीज वो करता है, जो चीज वो सप्लाई करता है या निकाल सकता है वेयर हाउस से, उसने आगे उसको कोरियर से भेजना है, तो हम उसी को नंबर हमने दिया है, अभी नंबर 7, यू हैंडल दिस टू दिस बायर एंड दिस कंट्री, तो तुम उसको अपना पार्सल बना के भेज दो। और सबसे उसने ये भी बोला कि जैसे ही शाम को हम लोग 5 बजे सपोज हम बंद करते हैं अपने हाउस को, हम घर जाते हैं, घर जाने से पहले ही बिल्कुल बाहर हम अपने शूज उतार देते हैं बिल्कुल, और बजाय कि हम सीधे ड्राइंग रूम में बोले भाई हमें चाय दो, ऐसा हम कुछ नहीं करते। वी गो टू द बाथरूम एंड टेक ए शावर, देन वी हम अपनी फैमिली वाले के साथ बैठ के ये सारा कुछ करते हैं। ऑल्दो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर अभी हालात, वक्त, कोविड ऐसा आ गया है कि अभी हमें बहुत कुछ और भी सीखना पड़ेगा। कई नॉर्म्स और भी अभी आएंगे जिसके अंदर ये हमें
रहना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि काम भी बहुत जरूरी है। बैठे बैठे आदमी कब तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो क्या करेंगे आप, कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे? ये सारी चीजें जरूरी है जो इसके अंदर मोस्टली मल्होत्रा जी ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताई, मिस्टर राजेश जैन ने भी बताई, कमल जी ने बताई। तो इन चीजों को हमने फॉलो करना है। अभी आने वाला जो टाइम है देखते हैं कि अभी 10-15 दिन कैसे निकलते हैं, मगर जहां तक मैं सोचता हूं अगर हम इसको अच्छी तरह से अलर्ट रह के रहेंगे तो हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स को भी काफी बढ़ावा देंगे, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देंगे, और जो प्रोडक्शन है उसकी भी इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कि इतनी ही चीज है, और बाकी तो डिटेल्स सारी बातें हो चुकी हुई हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you very much. Sir, can we conclude now? Can we close it? Malhotra साहब? या प्लीज, मेरे ख्याल में अब इसको कंक्लूड करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको, हमारा वैसे टाइम इतना ही था, इतने टाइम तक ये हमने रखा था कि हम को 4:15 बजे तक इसको वाइंड अप कर देंगे। 4:15 बजे मेरा हमारा सारा कवर हो गया। और जी कमल जी, सब ठीक रहा? थैंक यू। काफी मल्होत्रा साहब काफी डिटेल में आपने समझा, और ये बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री के लिए, एक पॉजिटिव नोट्स के साथ ये रहेगा। Thank you very much. I on behalf of EPCH. Thank you everyone. Thank you Rajesh. Thank you very much. Thank you, Malhotra ji. Thank you, everybody. All the Bye. panelists, and I would Thank also Thank you Ravi ji. Thank you very much. all the participants who have joined us in this webinar. I thank you all. As Mr. Malhotra said, even if we are able to save one life through our efforts, I think our job is done. So I would like to thank everyone once again, and I would request everyone to stay home, stay safe. God bless. Thank you again. Thank you.